Your Instagram bio says artist, sculptor, seeker. असल तो अल्लाह प्रेज बी टू अल्लाह, बनाया तो उसी ने, हम तो छोटा मोटा काम करते। मैं कभी भी नहीं कहता कि मैं नाक बनाता हूँ, मैं कहता हूँ मैं नाक को रीशेप करता हूँ, बिकॉज बनाया तो अल्लाह ने, बना ही नहीं सकता मैं। वीकेंड में चले आते हैं दुबई, कोर्स करके आ जाते हैं, इंजेक्शन लगाना सीख गए। उसको कुछ नहीं पता कि नॉर्मल चेहरा कैसे लगना चाहिए, लेकिन उसको पता है चीक फुलाना है। क्या मेरे ऊपर शाहरुख खान का चेहरा बना सकते हैं? अगर मुझे स्किन को चिपकाना हो मैं तो टाँके लगाता हूँ। मौलाना रूमी सेड, यू आर ट्वाइस एज ब्यूटिफुल एज यू कैन एवर इमेजिन योरसेल्फ टू। मतलब हमारे प्रोफेसर हमें कहते थे, बेटा अगर मरना भी है ना, तो जब ऑपरेशन थिएटर की लिस्ट खत्म होगी ना, फिर मरना। तो मर जाओगे तो काम कौन करेगा? वो अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं ना, फॉर दोज दैट लव टू प्लॉट एंड प्लान नो दैट अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट प्लानर। जो स्केड्यूल है उसमें लिखा होता था कि जी ए वाला टाइम जो है नमाज का है। सरवत ने नमाज पढ़ ली, सरवत नमाज नहीं छोड़ती। मैं बसों में, रिक्शों में गए, स्ट्रगल किया, 16-16 घंटे पढ़ा लिखा, जो भी किया। तुम इस दुनिया में जो भी अचीव कर लो, जो भी अचीव कर लो, इस खाल के टुकड़े से ज्यादा नहीं हो सकता। So I've just been watching, मेरे को Netflix में anime series देखी, and I'm watching it like morning, noon, night, and जब तक खत्म नहीं हो गई। Yeah, I mean I love cartoons, and I was like, oh shit, dude, मैं तो बड़ा खतरनाक है। Thanks for doing this though. No man, I didn't know, but जब इसने मुझे बताया जुनैद अकरम पे, मैं जब तुम्हें देखा तो I knew you because I attended your stand-up show and I really liked the work that you do. तुमने PSCC में किया था एक दफ़ा, नया नया शुरू किया था तुमने। Oh, wow, that was a long time back. या उस टाइम जब तुमने नया नया शुरू किया था, मैंने तुम्हें देखा, and I really, and then I'd seen your work, and I thought that your work is very intelligent work. Thank you, sir. And there's a very nice energy about you. So I knew that, और अब मेरी तबीयत भी थी, because मेरी neck में दर्द हो रहा था, so I was like हाँ I'll go there. नहीं मैंने नहीं करी ना, मैंने आज, हाँ इसीलिए तुमने 8 बजे किया ना, बिकॉज 8-9 घंटे में ऑपरेट करता हूँ ऐसे गर्दन झुका के। Really? My neck just takes a beating, man, and so I just took a few days off because I can't, the body is very important, you need to preserve. It's like an athlete. हाँ. It's like an athlete, right? I mean 8-9 घंटे आप ऑपरेट कर रहे हैं, गर्दन की 8-9 घंटे of constant straight operation without break, एक केस पे without break. And what about like जो client होते हैं, like वो बोर नहीं हो जाते कि मैं थक गया वो हूँ? बेहोश होते हैं, Okay, like they're gone. Anesthesia. sleeping. Oh. चिलिंग। उसके बाद जब मैं सर्जरी करके वापस आता हूँ तो उनकी मुझे पेरेंट्स मिलते हैं। बहुत हमने इंतज़ार किया। हाँ। I'm like, really now? You're telling me that you're tired of waiting. You're saying that you're tired of waiting. You're telling me that. Imagine what I've been through working on your child, you know? Yeah. So your Instagram bio says, we're on by the way. Okay, that's fine. So your Instagram bio says, first of all, thank you so much for doing this. Your Instagram bio says artist, sculptor, seeker, plastic surgeon. Not in that order. Seeker is the end. What is seeker? What are you seeking? More clients? तो देखो भाई, आई थिंक इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, वो है सीकर। बिकॉज आई बिलीव the most important role of any human being is to know why we are here, is to know what's the purpose of existence. It is not just to make money. It is not just to have fun. It is not just to go to parties or raise children. Yes, raising children is important, but it is something much deeper. It is to know your maker. It is to seek the truth about yourself, who you are. ये इतनी inherent perfection कहाँ से आई है? कौन है इसके पीछे, उसको जानना, and you have to seek him, and I think that is the most important task. Are you a very spiritual person? Well, I don't like titles. Okay. Because it just lessens the impact. अल्फाज और इंटेलेक्चुअलाइजेशन हर चीज़ के इम्पैक्ट को कम कर देते हैं। अब वो चाय पीने के मज़े को आप वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं? No. The experience of drinking tea, can you break it down in words? Never. उसी तरह आप अल्फाज से हर चीज़ को छोटा कर देते, लिमिट कर देते। बट येस, आई फील दैट there is an intelligence beyond our intelligence that's everywhere in our lives. And I want to connect with that, and I want to seek that. That's interesting. Fahad, मुझे ये बताएं, because you're in the business, what is beauty in your eyes? Beauty क्या है? खूबसूरती क्या है? मैं फिर थोड़ा सा वो बात करता हूँ, टेक्निकल बात करता हूँ। जब मैं छोटा था ना, तो मेरे दादा मुझसे कहते थे कि ये एक अफ्रीकन अमेरिकन लड़की थी,
तो कहने लगे ये बहुत हसीन है। अच्छा दादा मुझे तो इतनी हसीन नहीं लग रही। कह रहे नहीं तुम्हें हसीन नहीं लग रही, लेकिन किसी और अफ्रीकन अमेरिकन आदमी को ये वाकई बहुत हसीन लग रही होगी, बिकॉज यू नो रेसेस जो होते हैं उनको उनके टाइप के पसंद आते हैं। तो कोई अगर एक चाइनीज़ लड़की है आपको अच्छी नहीं लग रही, लेकिन किसी और चाइनीज़ को अच्छी लग रही होगी। दैट्स व्हाट दादा सेड, दैट्स व्हाट आई ग्रू अप बिलीविंग कि एक रेस के लोगों को उसी रेस के लोग समझ आते होंगे। But then as I started, when I became a plastic surgeon and I started reading up, and obviously I'm an artist and a sculptor also, and you observe, or I feel that I'm a student of beauty, I'm a student of nature. Or what is nature? God's work. So you are basically someone who observes God's handiwork. So, और फिर एक स्टडी भी है, तो उसमें उन्होंने ये रियलाइज़ किया, उन्होंने क्या किया कि they got people from all races to judge 50 pictures. उन्होंने एक पैनल बिठाया लोगों का सारे रेसेस के, अफ्रीकन अमेरिकन, कॉकेशियंस, मंगोलॉइड्स, चाइनीज़, व्हाटएवर, सारे, ठीक है। और उन्होंने उनको 50 या ज़्यादा पिक्चर्स दिखाई होंगी ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल रेसेस, एंड दे वर आस्क्ड टू जज देम कि कौन कितना हसीन है। All races except their own. all races and judge all races. सबको बहुत सारे फेसेस दिखाए और सबको बोला कि जज करो कि ये इंसान आपको ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। सो दे रियलाइज्ड दैट जो 7 से लेके 10 तक के लोग थे ना, वो हर रेस के लोगों को जो लोग पसंद आए ना, दे हैड अ सिमिलैरिटी ऑफ फीचर्स। तो अगर कोई हसीन चाइनीज़ आदमी था तो वो एक गोरे को भी हसीन ही लगा, वो अफ्रीकन को भी हसीन लगा। सो देन बेस्ड ऑन दैट दे रियलाइज दैट ब्यूटी जो है वो रेस स्पेसिफिक नहीं है, वो स्पीसीज स्पेसिफिक है। तो इफ़ यू आर अ ब्यूटिफुल ह्यूमन बीइंग, every other human being will find you beautiful regardless of your race. But if you are a beautiful horse, chances are that a human being may not be able to appreciate your beauty, but a horse will. So उससे उन्होंने फिर ये realize किया कि there is similarity of features. फिर जो 7 से लेकर 10 के लोग आए, उनके जब उन्होंने फीचर्स को ब्रेक डाउन किया तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि उन सब के फीचर्स में खासी सिमिलैरिटी है। नाक, चेहरे की लेंथ और विथ का प्रोपोर्शन, आँखों और नाक का प्रोपोर्शन, ये सारे प्रोपोर्शंस काफ़ी सिमिलर थे, चाहे वो अंग्रेज़ हो, अफ्रीकन हो, मंगोलॉइड, जो भी हो। ऑब्वियसली थोड़े से डिफरेंसेस हैं, बट बाय एंड लार्ज वो क्लस्टर सारे उनमें थे। सही। और जो 1 से लेके 5 तक के लोग थे ना, उनमें बहुत डिफरेंसेस थे फीचर्स में। सो बेसिकली जो ब्यूटीफुल लोग थे बिटवीन 7 to 10, नो मैटर द रेस, ऑल हैड अ वेरी सिमिलर सॉर्ट ऑफ फीचर्स। और जो 1 से 5 तक के थे, जो इतने ब्यूटीफुल नहीं अज्यूम किए गए, उनके बहुत डाइवर्स फीचर्स थे, नाक का साइज़, आंखों का साइज़, चेहरे का साइज़, ऑल ऑफ दैट। सो येस, ब्यूटी हैज़ अ मैथ टू इट। दैट इज़ वाई व्हेन यू सी समवन इंस्टेंटली यू आर लाइक, ओ ब्यूटीफुल, नॉट ब्यूटीफुल। शक्ल के एतबार से असल ब्यूटी तो इंसान की बहुत है, बट अगर आप शक्ल की बात करें, सिर्फ उस नैरो एस्पेक्ट में लें, तो वो इट्स ऑल्सो अ मैथ टू इट, कि अगर एक प्रोपोर्शन के अंदर किसी इंसान के फीचर्स हैं तो अच्छा लगेगा। इसीलिए अब जब हम फेशियल फिलर्स से, मैं ख़ुद भी जब काम कर रहा होता हूँ, और जब मैं फिलर से काम करता हूँ, फिलर्स आप फीचर्स क्रिएट कर देते हैं जस्ट विद एन इंजेक्टेबल, ठीक है ना। द पेशेंट इज अवेक एंड आपने चीक बोन्स हाईलाइट कर दी या जिन बढ़ा दी, जॉ लाइन बढ़ा दी, एकदम से फेस प्रोपोर्शन में आ जाता है। तो मैं खुद जब करते करते ना, एकदम से मैं खुद बीच में रुक जाता हूँ। आई सेड वाओ, लाइक बिकॉज असल तो अल्लाह, प्रेज बी टू अल्लाह, बनाया तो उसी ने, हम तो छोटा मोटा काम करते हैं। बट जब आप वो छोटे मोटे, बिकॉज असल तो अल्लाह ने बना दिया है ना, आप तो सिर्फ ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं कि आपने उसकी जॉ लाइन प्रोपोर्शन में नहीं थी, आपने थोड़ी सी विथ कर दी तो एकदम से चेहरा अच्छा लगने लगा। आपने थोड़ा सा चीक बोन्स को आपने हाईलाइट कर दिया, एकदम से चेहरा अच्छा लगने लगा। डू यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? सो वंस इन द मिडल ऑफ ऑल ऑफ दिस, वंस मैं खुद, जब उसका कोई नॉर्मल मीडियोक्रेसी होती है, एंड देन वंस आई एम रिस्टोरिंग द प्रोपोर्शंस, एंड सडनली आई माई सेल्फ स्टॉप फॉर अ सेकंड, आई एम लाइक, ओ माय गॉड, because you see it in front of you, the magic of getting the right proportion. So do you sometimes get कि you're getting in God's way, कि अल्लाह ने जिस तरह बनाया है, you're trying to, जैसे कि like if you're beautifying God's work that has already been done, तो कभी लोग इस तरह इस एंगल से नहीं कभी आते, like what kind of reactions do you get? देखो, अल्लाह का करम है that अगर आपका दिल साफ होता है ना, आपकी नीयत साफ होती है ना, तो अल्लाह खुद आपकी हेल्प कर रहा होता है। और जब अल्लाह आपकी हेल्प कर रहा होता है, फिर
सबको नज़र आ रहा होता है, एक चीज़ जो प्योर होती है ना, और एक जो चीज़ जेन्युइन इंटेंशन से आगे बढ़ती है, उसके ऊपर उंगलियां उठाना बड़ा मुश्किल होता है. सो जनरली बहुत रैंडमली कभी कभी कुछ मुझे लोग बोल देते हैं, और मेरा ऑनेस्टली बिलीफ यही है कि जब मैं सर्जरी भी करने जा रहा होता हूँ, मैं कभी भी नहीं कहता कि मैं नाक बनाता हूँ, मैं कहता हूँ मैं नाक को रीशेप करता हूँ. बिकॉज बनाया तो अल्लाह ने, बना ही नहीं सकता मैं, हड्डी नहीं बना सकता मैं आपको जैसे पहले बात कर रहा था कि पूरी दुनिया की आप पैसे एक तरफ रख दें, पूरी दुनिया की रिसोर्सेज एक तरफ रख दें, पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी एक तरफ रख दें, और मेरी स्किन का 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एक तरफ रख दें, दिस विल बी मोर प्राइसलेस. एक स्क्वायर सेंटीमीटर मेरी स्किन का नहीं बना सकते. तो हम तो कुछ नहीं क्रिएट कर सकते. अल्लाह की टेक्नोलॉजी तो हमसे लाइट ईयर्स अहेड है. यू नो, वी विल प्रोबब्ली नेवर गेट देयर. श्योर, उस अल्लाह की टेक्नोलॉजी, राइट? एब्सोल्युटली. बट अल्लाह की ही बनाई हुई चीज़ों में आप थोड़ा सा चेंजेस ले आते हैं. अब जैसे मेरा जो काम करने का स्टाइल है, मेरा जो सबसे ओवरराइडिंग प्रिंसिपल ये है दैट इफ एनीवन आस्क्स यू हु इज़ योर डॉक्टर, आई हैव फेल्ड. मेरा गोल ये होता है कि आप अल्लाह के काम में घुसें और ऐसे काम करें कि लगा ही नहीं कुछ काम हुआ है. क्योंकि ब्यूटी इज़ ओनली इन लुकिंग नेचुरल. द मिनट यू स्टार्ट लुकिंग अननेचुरल, यू स्टॉप लुकिंग ब्यूटीफुल. चाहे जितने भी चिजल चीक बोन्स हो, अगर आप अल्लाह के सिग्नेचर से निकल आए, जिस तरह अल्लाह इंसानों को बनाता है, जो उसके फीचर्स होते हैं. अब आप जो बहुत सारे अजीब अजीब से काम देखते हैं, वो ये होता है कि जिन लोगों को, जो लोग आर्टिस्ट, बिकॉज ये जो काम है ये डॉक्टर का तो बहुत कम काम है, तो एक्चुअली आर्टिस्ट का काम है. बिकॉज आप यू वर्किंग ऑन द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ आर्ट. इंसान का जिस्म इज द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ आर्ट एवर क्रिएटेड बाय द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट इन एग्जिस्टेंस, राइट? द सोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस इटसेल्फ. देखिए जी, बातचीत तो चलती रहेगी, लेकिन अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत ज़रूरी बात. जिंदगी का मजा लेना है तो वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में, ये अकेले 9 to 5 से नहीं हो पाएगा. और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए आपको ज़रूरत है एक बहुत ही रिलायबल फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐप की. और मेरी नज़र में OctaFX से ज़्यादा रिलायबल ऐप कोई नहीं है. और इतनी यूज़र फ्रेंडली है, कल्ली वल्ली भाई, एंड्रॉइड पे भी डाउनलोड करें, iOS पे भी करें. और ये जो आप ख्वाब देख रहे हैं ना कि जी 13 Pro Max खरीदना है, ट्रेडिंग करें, आ ही जाएगा आपका फोन. OctaFX की एप्लीकेशन रमजान के हर हफ्ते आपको दे रही है अप टू 15% लोअर स्प्रेड्स ऑन वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स. और इसके साथ एक और खास बात इस एप्लीकेशन की ये है कि विदाउट एनी वॉल्यूम बेस्ड फीस और बगैर किसी कमीशन के आप ट्रेडिंग कर सकते हैं. तो कल्ली वल्ली देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्रोमो कोड दिया हुआ है, अभी इसको डाउनलोड करें. और अब iOS पे भी अवेलेबल है और शुरू हो जाए. तो उसके काम, यू नो, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट you observe number one his style of work. आप उसका स्टाइल ऑफ वर्क पहले सीखें, फिर आप उसको कॉपी करेंगे ना. अब ये लोग जो होते हैं वीकेंड में चले जाते हैं दुबई, कोर्स करके आ जाते हैं, इंजेक्शन लगाना सीख गए. अब उसको कुछ नहीं पता कि नॉर्मल चेहरा कैसे लगना चाहिए, लेकिन उसको पता है चीक फुलाना है मैंने, वो आगे फुलाए चले जा रहे टू दी एंड कि ये रिजल्ट हो गया. डू यू अंडरस्टैंड? यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अल्लाह का स्टाइल क्या है. अल्लाह का स्टाइल है ना, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट. अल्लाह का स्टाइल है, और अल्लाह का आप स्टाइल हर चीज़ में इनहेरेंट देखेंगे. आप देखेंगे कि अल्लाह का जीनियस ही यही है कि सिंप्लिसिटी से सारी चीज़ें, इतनी सिंपल चीज़, इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें इतनी सिंप्लिसिटी से उसने की हुई है. व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स यू अंडरस्टैंड. और यही सबसे बड़ा जीनियस होता है कि कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड काम सिंपल से सिंपल तरीके में आप कर दें. तो आपका कहना ये है कि अच्छा काम वही है कि पता ही ना चले कि काम हो, पता ही ना चले काम हो, कुछ हुआ ही नहीं है. हाँ, कुछ हुआ ही नहीं है. और उसके लिए यू हैव टू ऑब्जर्व, यू हैव टू लुक एट ऑल सॉर्ट्स ऑफ फेसेस दैट यू कम अक्रॉस. यू हैव टू लुक एट एवरीवन, हर किसी का चेहरा देखें. आर्टिस्ट तो यही करता है ना, ऑब्जर्व करता है. आर्टिस्ट क्या है? आर्टिस्ट की जो नंबर वन रिक्वायरमेंट फॉर बीइंग एन आर्टिस्ट इज योर एबिलिटी टू ऑब्जर्व. दरख्त को देखें, पत्ते के शेप को देखें, फिर ही तो ड्रॉ करेंगे. आई एम अ स्कल्प्टर. आप स्कल्प करने के लिए जब आप बनाते तो आप पहले जो मॉडल को सामने बिठा के घंटों उसके चेहरे को देखते हैं, उसके प्रोपोर्शंस मेजर करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर रिक्रिएट करते हैं, राइट? सो यू हैव टू बी अ कांस्टेंट स्टूडेंट ऑफ ब्यूटी, कांस्टेंट स्टूडेंट ऑफ नेचर. अच्छा, प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड लोगों के काफ़ी मिसकंसेप्शंस रहते हैं, स्पेशली थैंक्स टू स्टार प्लस के ड्रामे कि जी किसी का एक्सीडेंट हुआ और वो शक्ल ही बदल के आ गया और वो बीवी पहचान नहीं रही, नया कैरेक्टर इन्होंने डाल दिया ड्रामे में. इज़ दैट पॉसिबल? ज़रा ये बताएं. No, that's not possible. Not at all. It's only fiction. क्या मेरे ऊपर शाहरुख खान का चेहरा बना सकते हैं? नहीं बना सकते. वो निकोलस केज की मूवी थी ना, फेस ऑफ. नहीं, वो नहीं. अब एक फेस ट्रांसप्लांट उन्होंने किया है, बट उससे जो रिजल्ट है वो बहुत ही अजीब सा आता है. Okay. मतलब सो
इस वक्त दुनिया में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती कि किसी और का चेहरा आप पे लगा दे और आपको पहले से बेहतर बना दे और ख़राब हो जाएंगे आप। ओके। या सो जब फेस ट्रांसप्लांट भी होता है तब होता है पूरा फेस उधड़ गया है, कोई डैमेज हो गया, ये हो गया है, और वो भी जब लगता है तो कोई डिसफंक्शनल सा लगता है बिकॉज यू कम ऑन। बट डू यू थिंक कि लाइक ऑब्वियसली जब किसी भी किस्म की करेक्टिव सर्जरी की टेक्नोलॉजी आ रही थी तो शुरू में इतनी एब्सोल्यूट नहीं लगती थी, बट विद टाइम वो इतनी ऐसी हो गई कि पता भी नहीं चलता। सो डू यू थिंक, चले आज अगर हम फेशियल ट्रांसप्लांट पे इस स्टेज में है कि दिखाई दे रहा है, बट डू यू थिंक लाइक 20-30 साल बाद इतना सीमलेस हो जाए कि पता भी ना चले? जब मैं सर्जरी करता हूँ मैं अपने पेशेंट्स को यही बताता हूँ, द मिनट आई ऑपरेट ऑन यू आई स्टार्ट क्रिएटिंग डैमेज। द मिनट आई कट योर स्किन हैज़ दिस ब्यूटिफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्व्स विद इन इट, लिम्फेटिक वेसल्स जा रही हैं बहुत हसीन तरीके से, हड्डी में से लिगामेंट निकल रही है, वो फिर कार्टिलेज में लग रही है, आगे लिगामेंट जाके स्किन में सीमलेसली ब्लेंड कर रही है और एक ब्यूटीफुल सी चीज़ क्रिएट की है। मैं तो लिगामेंट नहीं बना सकता, अगर मुझे स्किन को चिपकाना हो मैं तो टाँके लगाता हूँ, आप समझ जाएं। उसी तरह फेस के अंदर जो मसल्स और फेशियल एक्सप्रेशन है वो फेस के अंदर डिफरेंट जगह पे चिपकी हुई हैं थ्रू लिगामेंट्स, वो आप थोड़ी बना सकते हैं। तो आप फेस लगा तो देंगे, बट यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यू कांट, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल कि हम अल्लाह की टेक्नोलॉजी को, आई मीन आप जेनेटिक्स को मैनिपुलेट करके आप चीज़ें बना सकते हैं। उसी की चीज़ को इस्तेमाल, जैसे अब आप सीड्स में करते हैं, उसी की सीड्स इस्तेमाल करके आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स कर लिए, बट वो जो उसका प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस नहीं आप बना सकते। आप प्रॉब्ली जीन्स को मैनिपुलेट करके कुछ कर लें, बट यू कैन नॉट create the mechanics of what he does. You can't create something out of thin air. You can't do that. Right. I don't think you'll ever be able to do that. सही। एक और सवाल अक्सर रहते हैं कि कॉस्मेटिक सर्जरी वर्सेस ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? Beauty is about the right proportions. Facial beauty, जो superficial beauty है, it is about the right proportions. So cosmetic surgery can really go a long way in helping you get those proportions. सही। So let's say you're a 7 and if you get something done you can actually get a 9, और आपके सामने ये मॉडल को बेला हदीद वगैरह इनको देखें, थोड़ा सा नाक को ठीक कर लिया, उसका प्रोपोर्शन ठीक करा लिया, ब्राउ पर करा लिया, चेहरा ही बदल गया और अच्छे के लिए बदल गया। सो इट इज़ वेरी इंटायरली पॉसिबल टू एक्चुअली लुक अ लॉट बेटर देन यू लुक राइट नाउ थ्रू फिलर्स और सर्जरी और व्हाटएवर। ये बिल्कुल पॉसिबल है। एंड और अब तो माशाल्लाह से इतने अच्छे काम इंटरनेशनल, पाकिस्तान में तो आई डोंट नो इतने हैं, बट इंटरनेशनली तो बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। लॉट ऑफ आर्टिस्ट आर कमिंग दैट, जो मैं आपसे बात करूँ उनका भी यही माइंडसेट है, बिकॉज इंसानों में एक ही आदमी को पता है। ग्रोथ तो हर जगह होती है, हर कोई इंसान इंटेलिजेंट, हर किसी को अल्लाह ने बनाया, हर किसी को अल्लाह ने नवाजा है, तो सच बहुत सारे लोगों को एक साथ भी समझ आता है। तो अभी आई थिंक देयर इज अ बिग renaissance in our industry, in the cosmetic and the plastic surgery industry, where amazing work is being done, and we're understanding कि tastefully कैसे करना है। जैसे 80s के अंदर वो बर्बाद कर देते ना, वो फेस लिफ्ट जो सारा सब जो है वो देख के जो बदनाम धब्बा लग गया है। Now great work is being done. चलो, that's very fascinating. अच्छा, we live in the world of social media and especially Instagram की अगर हम बात करें तो उसने the sense of beauty standards बहुत elevate कर दिया है, and it has caused a lot of people go into depression because वहाँ पे we're looking at filtered photos and like a completely different sense of reality is happening. What are your thoughts about that? It's a disaster. It's a total disaster because I have patients coming in with a filtered picture and saying ये कर दें। ऐसे देखें भाई, ये फिल्टर लगा हुआ है, इसमें आपका चेहरा लंबा और पतला भी हो गया है। मैं आपकी हड्डियों को ऑल्टर नहीं कर सकता, जो आप कह रहे हैं ना ऐसे लिप्स कर दें, इट कांट हैपन। तो और द अनफॉर्चुनेट बिट इज़ कि लोग जो है ना अपने आप को सेल्फी में देखते हैं, और सेल्फी में देख के क्या कहते हैं, हमें ये देखें, हमें ये ख़राब लग रहा है। एंड दिस व्हाट आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू देम कि आप अपने आप को जैसे आप हैं वैसे तो कभी देख ही नहीं सकते। यस, बिकॉज आप तो 3 डायमेंशनल हैं। तो जैसे आप मुझे देख सकते हो और मैं आपको देख सकता हूँ, आप अपने आप को वैसे कभी भी नहीं देख सकते। जैसे फायर कैन नॉट बर्न इटसेल्फ, अ नाइफ कैन नॉट कट इटसेल्फ, सो टू द गॉड हेड हैज़ नो नॉलेज ऑफ इटसेल्फ। तो आप समझे मेरी बात, यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ 2 डायमेंशनल मिरर।
और वो भी बेचारे लोग ऐसे घुस के देख रहे होते हैं, तो ऐसी एक लाइन नज़र आ रही है। मैं लोगों को तो सबसे पहले तो मैं उनको ये समझाता हूँ कि पहले बात ये समझें कि आपका जो पूरा चेहरा इज़ अ वर्क ऑफ आर्ट, एक पेंटिंग है। आप पेंटिंग में एक हिस्से को फोकस करके देखते हैं, पूरी पेंटिंग को देखते हैं। आप कैसे देखते हैं पेंटिंग को? अभी आर्ट की बात कर रहे थे, व्हेन यू लुक एट अ पेंटिंग, आप पेंटिंग को कैसे देखते हैं? पूरी पेंटिंग ऑन द होल देखते हैं, एक एरिया पे फोकस करते हैं। लाइक एक ऑब्जेक्टिव आपका जरूर बनता है, बट देन इट्स अ होल पिक्चर। It's a whole picture. If you don't look at the whole picture and just look at one area and keep focusing on that area, are you going to lose sight of the bigger picture? Is that a wrong way of looking? It is a wrong way. It is a wrong way of looking. उसी तरह लोग क्या करते हैं कि मिरर से 6 इंच दूर खड़े हो जाते हैं और ये लाइन देखते रहते हैं बस, कि ये लाइन सही नहीं, ये लाइन सही कर दे, लाइन सही कर दे, एंड दे डोंट लुक एट हाउ ब्यूटीफुल द होल थिंग इज। आप समझ रहे हैं? सो मैं लोगों को यही समझाता हूँ कि सबसे पहले तो आप 2 फुट दूर खड़े होकर अपने आप को मिरर में देखें, एंड देन अंडरस्टैंड कि आप जो मिरर में देख भी रहे हैं ना, वो भी इनएक्यूरेट है, बिकॉज आप 3 डायमेंशनल है। मिरर एक आपको फ्लैट कॉन्स्ट्रक्ट दिखा रहा है, सो वो आप अपने आप को नेचुरली देख भी नहीं पा रहे हैं, सो वो भी इनएक्यूरेट है। और सेल्फी तो और बुरी है, बिकॉज वो तो इतने पास से ले तो वैसे ही सब फुला देती है। डू अंडरस्टैंड? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जितने भी आपके मेजर्स ऑफ लुकिंग एट योर सेल्फ में वो इनएक्यूरेट हैं। इसीलिए मैं लोगों को और ये मेरे अपनी पर्सनल जर्नी के थ्रू मैंने बड़ा रियलाइज है, बिकॉज मुझे भी बड़े इश्यूज होते थे। मुझे लगता था कि मैं फिज़िकली आई एम नॉट यू नो एज नाइस लुकिंग एज आई शुड बी, और मैं बहुत सारे लोगों को जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, मुझे भी वो कॉम्प्लेक्सेस थे। एंड अल्लाह का शुक्र है, बड़े रिसेंटली जाके मुझे फिर समझ आना शुरू हुआ है कि यहाँ मसला नहीं है, देखने वाले में मसला है। ये हमारा, बिकॉज हम जब अपने आप को देखते हैं ना, हम अपने आप को ऑब्जेक्टिवली नहीं देखते, हम अपने आप को बहुत इमोशनली देखते हैं। So you see yourself and suddenly you're like, oh my God, I hate the way I look. मत देखो. But then I realized, मुझे कैसे realize हुआ कि when I would look at a picture of myself, when I take a picture, I'm like, oh my God, I hate this picture. It looks so bad. Please delete कर दो. और 6 महीने बाद जब मैं वो पिक्चर को देखूँ, I'm like, oh my God, I looked so good. But now I look horrible. Delete कर दो. Horrible. But 6 महीने पहले मैं कितना अच्छा लगता था। और जब साल ब साल ये रिपीट होता रहा, then I realized, hey, wait a minute, there is something wrong. अगर अभी मैं एक नॉन इमोशनल स्टेट में अपने आप को देख के कह रहा हूँ wow, that actually looks good, इसका मतलब है कि I was actually looking good. It was my emotional state which was not right that made me not like what I saw. इसीलिए अब मैं अपने पेशेंट्स को ये कहता हूँ कि रात में सोने से पहले, सो बेसिकली मेरे पास 10 मरीज आते हैं ना ऑपरेट करवाने, तो मैं 8 को वापस भेज देता हूँ, क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं होती है। ओके। उनको ज़रूरत ही नहीं होती है। एंड योर जॉब इज़ टू बी अ विटनेस टू द ट्रूथ। सो आई ट्राई टू बी वेरी ऑनेस्ट विद माई पेशेंट्स। सो आई टेल मोस्ट ऑफ देम, स्पेशली जो वाकई बहुत हसीन होते हैं, उनको नज़र ही नहीं आ रहा। सबसे ज़्यादा जो डिससेटिस्फाइड होते हैं ना अपने फिजिकल अपीयरेंस से, वो सबसे ज़्यादा मॉडल्स होती हैं। इनसे हसीन कौन होता है? और सबसे ज़्यादा ये डिससेटिस्फाइड होती हैं। तो समझ रहे हो? राइट। Do you understand what I'm trying to say? Because they're in that environment where everybody Because the mindset is not, वही ना एक छोटी सी चीज़ को फिक्स कर लिया और पूरी पेंटिंग को भूल गए। Do you understand? They're not. So इसीलिए मैं अब सब उन लोगों को समझाता हूँ कि stand 2 feet away from the mirror before you go to bed, and look in the mirror and say, Ya Allah, give me eyes to see how beautifully you created me. Wow, that's beautiful. It's a fact. It's a fact. Maulana Rumi said, you are twice as beautiful as you can ever imagine yourself to be. So, जो तुम अपने आप को अपने ख्वाबों में इमेजिन करते हो ना कि तुम ऐसे लगोगे, तुम एक्चुअली उससे डबल ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। अब मौलाना रूमी तो अल्लाह के इतने करीब पहुंच गए थे, एंड आई न्यू दैट ही स्पोक फ्रॉम अ डीपर ट्रूथ। तो कुछ तो सच होगा ना भाई। लेट्स लुक इनटू दैट, एंड एटलीस्ट नाउ आई जस्ट टर्न 40 दिस ईयर। माशाल्लाह, शुक्र है अब जाके नजर आना शुरू हुआ है कि चलो कुछ है तो ही नजर आता। बाल भी अब थोड़े से हैं, जब जाना शुरू तो फिर नजर आएगी। ओह, आई हेटेड माई हेयर ऑल माई लाइफ। आई हेटेड माई हेयर। और अब जब जाना शुरू हो रहे ना, हम लोग वो बहुत अच्छे बाल है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। एवरी मॉर्निंग हम लोग या अल्लाह बहुत अच्छे बाल है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? सो इट्स अनफॉर्चुनेट that we're not able to see. अभी आप ये जो बात कर रहे थे ना सेल्फी वाली कि like you took a picture, you like I don't like it. I was smiling really wide. Why? Because मैंने कल ही एक TikTok देखा था. It was from a philosophical standpoint, exactly about this point. उसमें ये था कि जब आप अपनी recent picture देखते हो ना, exact your words, आप अपने आप को emotionally objectify कर रहे होते हो, ठीक है? And you hate your present self. बट सेम पिक्चर अगर आपको 1 साल बाद दिखाएंगे ना,
you would not hate it. You would actually like, अच्छा मैं ऐसे दिखता था, because आप अपने आप को present में objectively, emotionally देखते हो, और आप अपने past को symbolically देखते हो. Yes. So there's a difference in approach. So when you look at yourself symbolically, you're like, I wasn't that bad. Not bad. हाँ. Yeah, I was alright. हाँ. I was pretty alright. अब नहीं हूँ मैं अच्छा. अब नहीं हूँ मैं अच्छा. Yeah. Yeah. So that was exactly the same point. I'll share it with you. अच्छा मुझे ये बताएं कि when you were practicing medicine, any life-changing moment you came across? Yeah. This was very early on. And this was very early on जब मैं डाउ से मैंने ग्रेजुएट किया था, और फिर मैं सिविल हॉस्पिटल में अपनी हाउस जॉब, अपनी मैं जनरल सर्जरी की ट्रेनिंग कर रहा था. एंड रात में, एंड यू नो मैं डिफेंस का बच्चा, यू नो वो रात भर ड्यूटी करना, वो करना, कहाँ इतना नया शुरू हुआ था ना वो. सो रात में 3 बजे हमें आया कि गन शॉट आ गया, अब चले नीचे आ जाएं आप. और मैं बोला सीनियर्स को भेज दो. हम नए थे तो जरा हम चिल कर रहे होते थे ना, तो सीनियर चले गए. फिर फ़ोन आया, नहीं हमें एक और हेल्प चाहिए, नीचे आ जाओ. सो अब रात के 3 बजे मैं बिल्कुल सोता हुआ उठता हुआ नीचे गया. एंड देन आई वाज लाइक ओके पेशेंट को, और आई सेड मैं क्या करूँगा, मुझे तो खाली रिट्रैक्टर पकड़ के खींचने के लिए बुला रहे होंगे, मैं कौन सा ऑपरेट करना है. और कोने खांचे में खड़ा होऊंगा, स्क्रब करा के मुझे खड़ा करा देंगे. सो अच्छा स्क्रब करने का रूटीन होता है कि आपको 5 मिनट तक ना अच्छे से स्क्रब करना पड़ता है. अब रात के 3 बज रहे हैं, सर्दी का मौसम है, वहाँ हीटर भी नहीं होता था, और पानी भी ठंडा. अब मैं आया और मैं बोला यार 5 मिनट कौन स्क्रब करेगा. आई एम लाइक स्क्रब इसलिए करता है कि इन्फेक्शन, बिकॉज आपकी स्किन पे बहुत बैक्टीरिया होता है, स्क्रब करे तो इन्फेक्शन कम हो जाएगा. मैंने दिल में सोचा, कोई देख भी नहीं रहा था मुझे, मैं दिल में सोचा यार 5 मिनट कौन स्क्रब करेगा यार, बस 1 मिनट करते हैं और सर्जरी में चले जाते हैं, वैसे ही मैंने कौन सा ऑपरेट करना है. एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग इट. जस्ट देन मेरे ख्याल आया, and I seriously believe that we are connected to him and he sends us these things if we listen. Just then मुझे ख्याल है कि अगर मेरा बाप होता लेटा हुआ यहाँ पे और उसका ऑपरेशन हो रहा होता, तो क्या मैं 1 मिनट स्क्रब करके जाता, knowing that I can be carrying infections in that surgery. And I was like नहीं यार, I have to scrub for 5 minutes. हालांकि मैं रिट्रैक्टर पकड़ के खड़ा हुआ. बट उस दिन के बाद से वो जो मुझे ख्याल आया ना, उस दिन के बाद से एवरी पेशेंट दैट आई सॉ, आई थॉट अगर मेरा बाप होता है यहाँ पे, किस तरह मैं उसको ट्रीट करता. एंड दैट्स हाउ आई ट्रीट माई एवरी पेशेंट. एंड नाउ आई हैव कम टू अ पॉइंट वेयर माई पेशेंट्स आर लाइक माई चिल्ड्रन. लाइक आई लव देम एज मच एज आई लव माई चिल्ड्रन. आई सी देम एज पीपल दैट अल्लाह इज सेंट टू मी एंड आई नीड टू लुक आफ्टर देम because they've been sent to me by him. Because मैं तो नहीं पकड़ के लाता ना, मेरे पास आओ, मेरे पास कहाँ से आते. तुम समझ रहे मेरी बात. मैं तो नहीं फ़ोन करके तुम मेरे पास कल आना, जैसे अभी हमने अपॉइंटमेंट लॉक किया, स्केड्यूल किया, वो किए, खुद ही से आ जाते हैं. कौन भेज रहे हैं उनको? How are they coming? I'm not calling them, they're coming. So someone is sending them, and if someone is sending them means he trusts me, and I trust that everything happens by his hands. So yeah, so I think that really changed my perception towards how I work with my patients. I think awesome. That's made all the difference. Yeah. Great. Fahad, मैंने एक चीज़ नोटिस की आपके Instagram पे, whenever you're posting stories and whenever you're doing your procedures, नुसरत फ़तेह अली खान पीछे चल रहा होता है. इसके पीछे क्या साइंस है? यार honestly speaking कोई साइंस नहीं है. जो दिल करता है वो लगा दो. जब मेरा दिल सैड होता है, जब मैं कभी सैड हो रहा होता हूँ तो मैं कोई लव सॉन्ग सुन लेता हूँ. जब मैं बड़ा इंस्पायर्ड हुआ होता हूँ तो मैं कवाली सुनता हूँ, उसमें अल्लाह की बातें हो रही होती हैं, वो जाता है. कभी इंग्लिश गाने लगते हैं. सो इट्स बट नुसरत इज समवन दैट रियली स्पीक्स टू मी. सो आई गेस अदरवाइज कोई खास वो नहीं. It creates like it relaxes you while you're doing a procedure. Actually not more. I mean 8 घंटे अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ, 6 घंटा कर रहा हूँ, सो म्यूजिक एक्चुअली क्या करता है कि पूरे माहौल को एनर्जाइज कर देता है. अब जब हम ऑपरेट कर रहे होते हैं, इट्स पूरा माहौल एक प्ले का एनवायरनमेंट है. सही. बिकॉज आई एम श्योर तुमने भी रियलाइज़ किया होगा ज़िंदगी में कि जिस भी काम में अगर मज़ा आ रहा है ना, काम सही हो रहा है. आई फिगर्ड आउट वेरी अर्ली ऑन. वो जो था ना कॉन्सेप्ट कि जब तक अपने आप को दिल नहीं मार रहे, जिस्म नहीं मार रहे और मर के नहीं कर रहे और सीरियसली उसका नहीं कर रहे, तब तक काम, वो कॉन्सेप्ट इज़ वेरी यूजलेस, आउटडेटेड. जब तक आप इन अ स्टेट ऑफ लव, इन अ स्टेट ऑफ फ्लो, इन अ स्टेट ऑफ फन में नहीं होंगे ना, आपका काम में ब्रिलियंस नहीं आएगी. ठीक है ना. अपने आप को मार के तो कोई काम नहीं हो सकता है. I'm glad you mentioned the word flow.
It's very important. It's very important. It's In very fact, important. इस पे एक book भी है, Knee High Cheeks and Me High. He's a, I think, Polish psychologist perhaps. Okay. वो पूरा इसके क्रिएटिव जूसेस के ऊपर ही है कि जी फ्लो में रहना बड़ा ज़रूरी है. हम देखते हैं आज आसपास अपने दोस्तों में they are having wonderful careers, making good money, but they feel like shit. I mean, like they hate Mondays. मेरा ये मानना है कि if you hate Mondays, that means you're not doing what you love. You're not doing what you मैं love. तो 7 दिन यहाँ बैठा होता हूँ. नहीं, I completely. और आपसे भी जब बात भी करी, the energy about this, just शौक से आप मुझे अपना काम के बारे में बता रहे थे. हाँ. Shows that you love what you're doing. Khalil Gibran कहता है. I don't know if you read Khalil Gibran. Not as much, but yeah, quotes. Khalil Gibran is just a giant among men. And Khalil Gibran कहता है कि it is better to sit outside a temple and take charity from those that love their work rather than earn any money doing something that you don't love. Oh wow. हाँ, आप सोचें इतनी अहमियत है loving what you do की. And when you love what you do, तो brilliance तो आपके पीछे भागती है. Fahad, I get a lot of questions from youngsters. They are doing their graduations. अम्मी ने बोला ये कर लो तो कर रहे हैं. 26 साल के हो गए, 28 साल के हो गए. Even I've had emails from people who were our age. They're like कि समझ नहीं आ रहा. Everything's fine मगर मज़ा नहीं आ रहा. Like it's very difficult to find your passion. What's the key? How did you find yours? Okay, now because for the longest time I didn't want to be a doctor. I hated to be a doctor because my father's an orthopedic surgeon and a very successful one. MashaAllah. So growing up, I was always told that I will be an orthopedic surgeon, not even a doctor, an orthopedic surgeon. Direct. मतलब ये भी नहीं कि पूछते भी नहीं थे ना कि बेटा तुम क्या बनोगे, ये तो यही बनेगा. Wow. You know, and so this decision was always made for me. But I never really wanted to be a doctor, maybe because it was forced upon me, right? So मुझे याद है जब मैंने डाउ का इम्तहान दिया, जो बच्चे हैं सारे वो सेल्फ फाइनेंस के भी दे रहे हैं, प्रोफेसर सीट पे भी अप्लाई कर रहे हैं, डॉक्टर सीट पे भी अप्लाई कर रहे हैं. मैंने सिर्फ मेरिट वाली सीट पे अप्लाई किया. और मैं बिल्कुल ही बिकॉज मेरी अम्मा मुझे ओ लेवल से निकाल के मैट्रिक में इंटर में कराया ताकि कन्वर्जन का मसला नहीं हो. एंड करते कराते मैंने डाउ का एग्ज़ाम भी दिया. सो आई थिंक जब मैंने एडमिशन टेस्ट दिया तो 8,500 बच्चों ने सिंध में एडमिशन टेस्ट दिया, तो मेरा 52nd नंबर था मेरे टेस्ट पे. सो आई जस्ट गॉट इन. And when I got in, I did not like it. I wanted to go to America, be a frat boy. You know, I didn't want to be a doctor in Dow. So I wasn't happy. तो फिर एक दिन मेरे अब्बू ने बोला ओके तुम इतने अनहैप्पी हो तुम अमेरिका चले जाओ. फिर अच्छा ठीक है मैं चला जाता हूँ. तो फिर मैंने अपने SATs दिए. मुझे $16,000 की स्कॉलरशिप मिली और मैं वहाँ चला गया. वहाँ मैं फिर 1 साल पूरा रहा. फिर 9/11 हो गया. बट जब मैं वहाँ गया और मैंने अपने सारे शौक पूरे कर लिए, फ्रैट बॉय बन गया, थिएटर पढ़ लिया, इकोनॉमिक्स पढ़ ली, कंप्यूटर साइंस पढ़ ली, जो भी 1 साल के अंदर डिफरेंट कोर्सेज आप लेते रहते हैं. लेकिन जाने से पहले मैं 1 साल MBBS कर चुका था, मेडिसिन का 1 साल गुजार चुका था. जब मैं वहाँ गया ना और फिर मैंने एक्चुअली कंपेयर किया कि मैं MBBS वर्सेस दिस, आई रियलाइज्ड कि यू नो व्हाट, आई एक्चुअली इंजॉयड द लर्निंग दैट आई हैड एज एन MBBS डॉक्टर. MBBS की जो लर्निंग थी मुझे वाकई बेहतर लगी. तो मैं वापस आ गया. बट इवन वापस आके भी व्हेन आई केम बैक, सो लोग कहते थे कि यार तुम जहाँ से शुरू किया तुम वहीं you ended up where you started. I said yeah, but the difference is that this time I want to be here. And that makes all the difference. कि when you feel कि ये आपकी अपनी चॉइस है, अगर ख़राब भी है तो अभी अपनी चॉइस है. मैं अमेरिका अपनी चॉइस पे गया ना, वो didn't work out for me, but वो मेरी चॉइस थी ना. So I was okay to come back, and then I took medicine, and then I learned to love it. You find something that you like, and then you learn to love it. That's very important. So I think you worked on regret minimization framework, क्योंकि अगर आप वो ट्रिप ना लेते 1 साल का, फिर शायद आपको ये रहता है what if में रहते What if अगर मैं ये कर लेता. But because you explored other options early on, and then you had a clearer picture कि नहीं, I think this is better. Absolutely. वरना फिर देखो ना, वो कहते हैं ना हरकत में बरकत है. हाँ, हरकत में बरकत है. आज मैं I'm a plastic surgeon, and माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर जानती है, तो समथिंग तो सही हुआ होगा ना. But I did that to get here.
So you can't say that was a wrong move. Yeah. You see, maybe if I hadn't gone to US, I wouldn't be here. Huh. You know what I'm saying? Yeah. So कोई straight path नहीं है. So all those young people that are out there, I want to number one tell them कि इतना stress ना ले. सबसे पहले, because मैंने तो अपनी हर मुमकिन कोशिश की इससे भागने की. मैं तो एक्टिंग भी इसीलिए की मुझे डॉक्टर ना बनना पड़े. बट देखो आज अल्लाह मुझे कैसे ले आया. So and I remember going, this was the toughest decision in my life. मुझे बनना क्या है. कर तो मैं रहा था MBBS पढ़ा से कि मुझे नहीं करना, मुझे क्या करूँ, मैं क्या करूँ. But then now hindsight में ही आप dots connect कर सकते हैं. Now that I'm 40, I can look back and see कि ये journey कैसी थी. And now that I'm happy at where I am, like I would not be anywhere but here. I can actually look and say कि हाँ चलो जो भी हुआ वो सही हुआ. तो वो let's look at क्या हुआ. So if you was to ask me, यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारी चीज़ें हुई जिस पे मेरा कोई रोल नहीं था. मैंने तो बहुत सारी गलतियाँ भी की that worked out for me. So मैं सारे यंग लोगों को यही बताना चाहूँगा कि is that my camera? Yeah. मैं सारे यंग लोगों को यही बताना चाहूँगा कि अपने ऊपर इतना स्ट्रेस ना लें. आप लेना चाहें तो ले सकते हैं. जैसे सूरज है, सूरज बिलियंस ऑफ ईयर्स से सुबह निकलता है और शाम में ग़ुरूब हो जाता है. आपके परेशान होने से सूरज के निकलने, उतरने, चढ़ने का कोई कनेक्शन नहीं है. आप परेशान हो सकते हैं कि कल सूरज निकलेगा नहीं निकलेगा, होगा नहीं होगा, बट सूरज फिर भी निकलेगा. उसी तरह आपकी लाइफ के अंदर भी एक ऑर्डर है, आपकी लाइफ के अंदर भी एक डिज़ाइन है. जैसे सूरज में एक डिज़ाइन है, आप में भी एक डिज़ाइन है. और मैं अपनी ज़िंदगी के डिज़ाइन मुझे अब नज़र आने लगा है. तो आपके लिए भी चीज़ें हो जाएंगी एज लॉन्ग एज यू जस्ट फॉलो योर हार्ट. बिकॉज आपके अंदर की जो आवाज़ है ना वो अल्लाह से आती है. आप समझ रहे हैं? क्योंकि जहन जो माइंड है ना बहुत एक लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट है. फॉर इंस्टेंस आप कोरोना वायरस प्रिडिक्ट कर सकते थे? आपका जो दिमाग है और जो यंगस्टर्स का दिमाग है जो अभी 26 के, जिनको लग रहा है कि डूम एंड ग्लूम है, कुछ नहीं होगा, नौकरी नहीं मिलेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, सब ख़त्म हो गया, अमेरिका नहीं जा सके, बाहर नहीं जा सके, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, जो उनका दिमाग उनको ये बता रहा है. अगर आपका दिमाग कोरोना वायरस नहीं प्रिडिक्ट कर सकता तो आपका दिमाग जो फ्यूचर के इतने सिनारियोज आपके दिमाग ने बनाए हुए, हाउ कैन यू बी श्योर कि वो एक्यूरेट है? और वो सिनारियोज बना के आप जो उसका एसोसिएटेड पेन और सैडनेस और सफरिंग ले रहे हैं जो कि आपकी आज में एनर्जी को कम कर रहा है. भाई आज कॉन्फिडेंट, अगर जो भी होगा आज ही से होगा ना. अगर तुम अभी कॉन्फिडेंट होगे तो तुम 10 जगह हाथ मारोगे, 10 जगह ट्राई करोगे. बट अगर आपके जहन ने एक नेगेटिव सिनारियो जो हम सबका जहन बनाते हैं और आपने उसे आइडेंटिफाई करके बिलीव कर लिया कि यही होगा, एंड सडनली फील लाइक आप तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है. वो कहते हैं ना, यू सफर बिकॉज ऑफ द सिनेरियोज योर ब्रेन हैज क्रिएटेड. यू सफ़र मोर इन इमेजिनेशन दैन रियलिटी. सेनेका. तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हम सब, और मैं भी उस सफरिंग से गुजरा हूँ, तो मैं आप सबको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक हायर डिज़ाइन है जो आपकी ज़िंदगी को चला रहा है. वही डिज़ाइन जो आपके खाने को डाइजेस्ट कर रहा है, जो आपके दिल की धड़कन को चला रहा है, जो आपके नाखून बढ़ा रहा है, जो आपके बाल बढ़ा रहा है, वही डिज़ाइन आपकी ज़िंदगी को भी चला रहा है. लेट गो विद द फ्लो एंड सरेंडर, हैव फेथ. हो जाएगा. इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल लेजी होके बैठ जाओ. अपना काम करो, इन द मोमेंट जो कर सकते हो करो. शोइंग अप, कीप शोइंग, ड्रेस अप एंड शो अप. ड्रेस अप एंड शो अप. रूमी कहता है कि इफ द ओनली थिंग यू नो हाउ टू डू इज वॉक, देन स्टार्ट वॉकिंग. इफ द आप चले, मैं तो सर्जन हूँ, तुम इतना बड़ा काम करते हो, अगर तुम्हें सिर्फ चलना ही आता है ना, तुम चलना शुरू कर दो. और आगे ज़्यादा देखने की कोशिश नहीं करो कि मैं चल के कहाँ पहुँचूंगा, कहाँ नहीं पहुँचूंगा. वो अल्लाह का काम है, वो तुम्हारा काम नहीं है. तुम्हारा काम है आज चलना, तुम चलो. वो तुम्हें कहाँ से कैसे करके किधर कहाँ पहुँचा देगा वो उसका काम है, उसमें नहीं पड़ो. यू नो व्हाट आई एम सेइंग? So for all of you out there, just be in the now, focus on what you're doing. और अगर तुम ओपन होगे ना, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा. अगर तुम अपने दिल की नहीं सुनोगे, तुम्हारी चॉइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज द ओनली थिंग दैट अ ह्यूमन बीइंग कैन एक्चुअली डू इज चूज. लिटरली मैं तुम्हें बताऊँ, बिकॉज मैं तो अब जो काम भी करता हूँ ना, और जो मैं काम करता हूँ वो तो मेरे लेवल से बहुत ज़्यादा है. एक इंसान के चेहरे को रीअरेंज करना तो अल्लाह का काम है भाई, इंसान का काम कहाँ से. तो मैं तो जब करने भी जाता हूँ सर्जरी, मुझे पता है कि काम कितना मेरे लेवल से ज़्यादा है. तो मैं तो अल्लाह को रोज़ इन्वोक करता हूँ कि भाई डू इट विथ मी, आई वॉन्ट यू टू गाइड मी, आई वॉन्ट यू टू वर्क थ्रू मी, बिकॉज आई नो हाउ स्मॉल आई फील कंपेयर टू द टास्क एट हैंड. उसी तरह हम सबको
just be in the moment, have faith in him and do whatever you're doing. और be open, रास्ते निकल आएंगे. और प्रोसेस तो हमेशा होता ही पेनफुल है, लाइक But it doesn't have to be painful ना. नहीं, आई मीन इट वुड फील पेनफुल, मगर उसका एंड रिजल्ट हमेशा अच्छा ही होता है. यू माइट नॉट लाइक व्हाट यू गोइंग थ्रू राइट नाउ, बट आफ्टर सम इयर्स व्हेन यू लुक बैक, ऑल ऑफ दैट मेक्स सेंस. All of those suffering makes sense to you. But it's your choice whether you look upon it as suffering or look upon it as your journey. हाँ. जब आप पहाड़ के ऊपर 1 घंटा ट्रैक करते हैं, आपकी टांगों में दर्द हो रहा होता है, बट यू नो यू गेटिंग टू दैट व्यू एंड इट्स वर्थ इट. तकलीफ हो रही होती है ना टांगों में, दैट तकलीफ इज फन तकलीफ. सिमिलरली जिंदगी के अंदर जब आपको जो डायमंड होता है, कोल को कितने प्रेशर में डाला जाता है तो डायमंड बनता है. एंड आई नो जब हम अपनी ट्रेनिंग करते थे वो इतना टफ टाइम था मेरे लिए कि 40-40 घंटे में स्ट्रेट ऑपरेट कर रहा होता था. मतलब एक 110 आवर्स अ वीक काम कर रहा होता था जब मैं ट्रेनिंग करता प्लास्टिक सर्जरी की. मतलब हमारे प्रोफेसर हमें कहते थे, बेटा अगर मरना भी है ना तो जब ऑपरेशन थिएटर की लिस्ट खत्म होगी ना फिर मरना. देखिए जी, बातचीत तो चलती रहेगी, लेकिन अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं एक बहुत जरूरी बात. जिंदगी का मजा लेना है तो वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में. ये अकेले 9 to 5 से नहीं हो पाएगा, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए आपको जरूरत है एक बहुत ही रिलायबल फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐप की. और मेरी नजर में OctaFX से ज्यादा रिलायबल ऐप कोई नहीं है, और इतनी यूजर फ्रेंडली है. कल्ली वल्ली भाई एंड्रॉइड पे भी डाउनलोड करें, iOS पे भी करें. और ये जो आप ख्वाब देख रहे हैं ना कि जी 13 Pro Max खरीदना है, ट्रेडिंग करें, आ ही जाएगा आपका फोन. OctaFX की एप्लीकेशन रमजान के हर हफ्ते आपको दे रही है अप टू 15% लोअर स्प्रेड्स ऑन वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स. और इसके साथ एक और खास बात इस एप्लीकेशन की ये है कि विदाउट एनी वॉल्यूम बेस्ड फीस और बगैर किसी कमीशन के आप ट्रेडिंग कर सकते हैं. तो कल्ली वल्ली देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्रोमो कोड दिया हुआ है, अभी इसको डाउनलोड करें. और अब iOS पे भी अवेलेबल है, और शुरू हो जाए. तो मर जाओगे तो काम कौन करेगा. मतलब इतना हमारा टफ रिजीम होता था, हम इतना काम करते थे और हमें सब यही कहते थे, कुंदन बन के निकलोगे, कुंदन बन के निकलोगे. एंड आई प्रॉमिस यू वो जो रगड़ा था ना, वो रगड़ा भी क्यों कहा उसको, वो सच अ ब्यूटीफुल टाइम. प्रोसेस और इतना हसीन टाइम था. आप 40-40 घंटा जाग के हर किसी की मदद कर रहे हैं, काम कर, अपने आप को पुश कर रहे हैं, अपने आप को खोल रहे हैं, आपकी अपनी बीइंग को खोल रहे हैं. आप समझते थे आप इतना है, फिर आप इतना growing pains, but pain doesn't have to be painful. It's a process, you know. So I think it's all about your perspective. क्योंकि आपने जहाँ आपने पहुँचना है वहाँ आपने पहुँचना तो है. चाहे तुम रो के आओ या खुश हो के आओ, तुमने उसको, तुम्हें जहाँ लाना है वो तुम्हें लाके खड़ा तो कर देगा वो. तो जो हमारी मर्जी है, सरेंडर कर दो, चिल करके जाओ, enjoy the ride, because it is a ride. And he is driving. अच्छा, अभी आपने बात की दिल की बात, सुनो. दिस इज व्हाट माय लर्निंग इज सो फार इन लाइफ, एंड आई कीप लर्निंग बिकॉज लर्निंग का प्रोसेस तो कभी ख़त्म नहीं होता. यू नो, बचपन में सुनते थे कि अल्लाह दिलों पे ताले डाल देता है. फिर हमें समझ नहीं आता यार, इंसान तो दिमाग से सोचता है, तो दिल के ताले का क्या मतलब है, दिल बंद कर दिया ही. बट लाइक यू नो, एज यू गो इन लाइफ, दिमाग बड़ा एनालिटिकल होता है. चाह जो होती है ना, वो दिल से ही आती है. कि जी यहाँ से प्रोसेस शुरू होता है, जो फिर यहाँ पे जाता है, फिर ये एनालाइज करता है कि ये करना है नहीं करना, लेकिन चाह हमेशा यहाँ से आती है. देखो, दिमाग जो है ना एक टूल है, एंड एज सच एक लिमिटेड टूल है. अभी क्या तुम्हें पता था कि हमारी ये बातें होंगी? नहीं. डिड यू नो वी टॉक अबाउट दिस? नहीं. तो जब तुम आधे घंटे बाद का, जिसकी तुम इतनी तैयारी की हुई है, इतने तुमने क्वेश्चंस लिखे हुए, ये किया हुआ है, इतनी तुम लोगों ने तैयारी की हुई है, जब तुम लोग आधे घंटे बाद का नहीं प्रेडिक्ट कर सकते क्या होगा, तुम्हारा दिमाग जो इतना कूल बन रहा है, जो सब बन रहा है, सारे फ्यूचर के सिनारियोज बनाए हुए इसने, जब तुम आधे घंटे बाद का नहीं प्रेडिक्ट कर सकते थे कि क्या होगा, तो फिर तुम किसी मेजर लाइफ इवेंट का कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो? इसका मतलब है एवरी एनर्जी दैट यू एक्सपेंड इन प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, यस, एक जनरल डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है, but every energy where you spend in the future is a waste of your mental energy and a waste of the only thing that you ever have is which is the now. Thought जो होती है, thought दो ही चीज़ की होती है ना, past की होती है, future की होती है, और thought कोई नहीं होती है. ठीक है ना? तो thought क्या करती है? It robs you of the only thing that you ever have which is the now. अब तुम और future, चलो अगर future के बारे में सोचने को फ़ायदा होता तो समझ भी आती. जब आप 1 घंटे बाद का नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, तो तुम 10 घंटे, 10 साल, 2 साल, 1 महीने बाद का क्या आप सोच के वो ज़ाया करें? You know what I'm saying? So your mind is a limited instrument, but your heart is connected to God.
Your mind actually limits you. अब I'll ask you a question. This is something that I've now, मेरे दिल में ये ख्याल आया, मुझे ये बताओ कि देने वाला कौन है? अल्लाह ताला। हवाई बात नहीं करो, कंफर्म बात करो। ओके, देने वाला कौन है? क्या चीज़ देने वाला? देने वाला कौन है? सस्टेनर कौन है? तुम्हें कौन दे रहा है? अल्लाह ताला। कंफर्म है? हाँ, तुम्हें कौन दे रहा है? हवाई बातें नहीं करो, कंफर्म बातें करो। हाँ, डन है, लॉक कर दें, कर दे, लॉक कर दें, लॉक कर दे। पक्की बात है। वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? देना इज अनलिमिटेड। बाबा अल्लाह लिमिटेड है, अनलिमिटेड अल्लाह है? अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है। और हाँ। देने वाला कौन है? अल्लाह। और वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड। तो लिमिट कहाँ से आ रही है? दिमाग से। मांगने वाले से। और मांगने वाले में लिमिट कहाँ से? दिमाग से। द मिनट यू से कि यार जुनेद आई वॉन्ट टू डू दिस, इमीडिएटली तुम्हारा दिमाग विल फ्लड यू विद, हो ही नहीं सकता, आज तक हुआ है, पहले हुआ था, अब होगा, तुमने अपने आप को देखा है, तुम्हारी कोई ये है वो है। बट वॉट यू हैव टू टेल योर माइंड देन इज कि भाई तुम तो कोरोना, तुम तो 1 घंटे बाद की नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, तुम कहाँ से इतने हीरो बन रहे हो, तुम कौन सी इतने कर रहे हो कि नहीं होगा, होगा नहीं होगा। जब देने वाला अल्लाह है, राइट, तो हम कहाँ से लिमिट लेकर आ रहे हैं? लिमिट हम लेकर आ रहे हैं, बिकॉज अगर देने वाला अल्लाह है और अल्लाह अनलिमिटेड है, देन हमारा रोल क्या है? इज जस्ट टू चूज, एंड वंस वी चूज दिस इज व्हाट वी वांट, देन डोंट लेट द माइंड कम इन, एंड द माइंड विल कम इन। एंड वंस द माइंड कम्स इन, जस्ट टेल योर माइंड कि भाई जब देने वाला ही अल्लाह है, तो तुम बोलते रहो, मेरा काम था चूज करना, और मैंने चूज कर लिया, दिस इज व्हाट आई वांट, और दिस इज द डायरेक्शन दैट आई वांट टू गो इन, क्योंकि करवाने वाला भी अल्लाह ही है। बिल्कुल। आप सिर्फ उसको रोक सकते हैं, ये ताकत उसने आपको दी है। यू कैन लिमिट योर सेल्फ, यू कैन लिमिट योर सेल्फ, ये ताकत अल्लाह ने आपको दी है। सो जब आपने जहन में कुछ सोचे एंड यू से कि आई वांट दिस, खुले दिल से हाँ मुझे चाहिए, फिर दिमाग जो भी बोले, जस्ट टेल योर सेल्फ कि अब देने वाला ही अल्लाह है, तो ये लिमिट की जो बातें आ रही हैं इनको आने दो, जाने दो। आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल। जहन जो है ना, योर माइंड मेक्स मॉडल्स, एनालिटिकल टूल है ना, तो मॉडल्स जैसे पास्ट पे तो रिग्रेट करता है, बट फ्यूचर के लिए मॉडल्स प्रिडिक्ट करके बनाते हैं ना कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, फ्यूचर में ऐसे होगा, मॉडल्स प्रिडिक्ट करता है। बट यू सी द माइंड इज अ टूल, और माइंड कैन ओनली नो व्हाट इट हैज सीन। माइंड कैन ओनली नो व्हाट इट हैज सीन। सो माइंड जब भी आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट करेगा ना, इट विल प्रिडिक्ट द फ्यूचर बेस्ड ऑन पास्ट मॉडल्स। तो जो भी आपके माइंड ने पास्ट में देखा, उसी का कोई एक वेरिएशन वर्जन लगा के, पास्ट में बुरा हुआ, ये हुआ, वो, तो उसी का एक हैम्ड अप वर्जन ये फ्यूचर पर प्रोजेक्ट कर देगा। Which is why you can never paint a picture of a person who doesn't exist. Exactly. क्योंकि आप नया चेहरा नहीं बना सकते, आपका जहन कहीं ना कहीं से ला रहा होता है। Because did you know that we would talk about this tonight? No way. जो हमारी अभी कॉन्वर्जेशन हो रही है is an act of God. The future is an act of God. The future is 100% uncertain. माइंड का मसला ये है कि माइंड को चाहिए होती है सर्टेनिटी, माइंड को चाहिए होती है सिक्योरिटी, माइंड को चाहिए होता है कंट्रोल। आपका जो माइंड है वांट्स टू नो कि भाई अभी मैं यहाँ से निकलूंगा तो मुझे कोई मार तो नहीं देगा। माइंड वो थ्रेट एनालिसिस करता रहता है, वो करता रहता है। हमारी बॉडी एक सूट है, एक आर्मर है जो हमें बचा के रखती है। भूख लगती है तो अलर्ट आता है, पानी में जाते हैं तो वो लाइनें बन जाती हैं ताकि आप ग्रिप करके ऊपर आ जाओ। सो ये पूरा बॉडी जो सूट है, दिस इज अ थ्रेट एनालिसिस। दिस इज अ थ्रेट एनालिसिस। बट माइंड जो है ना ओवर एक्टिव हो गया है। हाँ, आप समझ रहे हैं? अब माइंड जो है ना, माइंड इज अ टेरेबल मास्टर बट अ वंडरफुल सर्वेंट। योर माइंड इज अ टूल, यू अंडरस्टैंड। हम वो उसने कहा था ना, उसका मैं नाम भूल गया, रेने डेकार्ट, आई थिंक देयरफॉर आई एम। दैट इज द वर्स्ट थिंग, बिकॉज वी आर नॉट आवर माइंड, वी आर नॉट आवर थॉट्स, वी आर मच बिगर देन आवर माइंड। कॉन्शियसनेस। एग्जैक्टली। अब तुम सांस लेते हो, आर यू योर लंग्स? नो, यू आर मच बिगर देन योर लंग्स। जो तुम हवा अंदर बाहर कर रहे हो, इज दैट एयर यू? नो, नो, it was part of outside, comes in and goes back outside. Similarly, you are not your mind. You are much bigger than your mind, and you are most certainly not your thoughts. Your thoughts are what you picked up as a child. जो तुम्हारे, जब तुम बच्चे थे, छोटे थे, जो तुम्हें कंडीशनिंग हुई, अंदर घुस गई, you were not able to guard against them. ये पूरा एक कॉन्स्ट्रक्ट तुम्हारे दिमाग में जो थॉट्स आ रही हैं, जा रही हैं, all of that thinking is an activity of the mind. You understand?
और जितना ज़्यादा आपका माइंड शोर करता है, जितना ज़्यादा आपका माइंड शोर करता है, उतना आप अपने गाइडेंस से दूर चले जाते हैं. बिकॉज एक स्टेटिस्टिक्स कहती है कि एक एवरेज आदमी के जहन में 50,000 से लेकर 70,000 थॉट्स आती हैं रोज़. 50,000 से लेकर 70,000 थॉट्स. अब इस 50,000 से लेकर 70,000 थॉट्स में 90% आर नेगेटिव, गिल्ट इंड्यूसिंग, शेम इंड्यूसिंग, और इसका मतलब हर कोई इस पर बोलेगा. इसका मतलब इट्स अ जनरल कंडीशन, राइट? 90% आर नेगेटिव, shame inducing, guilt inducing, self limiting thoughts, and which is not even true. सच भी नहीं है ये. तो तुम सोचो कितनी मेंटल एनर्जी आप एक्सपेंड कर रहे हैं इस कचरे से डील करने में. यू अंडरस्टैंड? और इस टाइम में, इस शोर के अंदर आपको गाइडेंस भी आ रही है. और सोचो कितनी वैल्यूबल चीज़ें आप मिस कर रहे हो इस शोर की वजह से, इस कचरे की वजह से. इतना सारा कचरा है कमरे के अंदर कि जो रूबीज इधर उधर स्कैटर्ड हैं वो मिस कर दिया आपने. जो आपको मिलना है वो तो अल्लाह ने आपको, जो थॉट अल्लाह ने आपको देनी है वो तो ऐसे ठक करके लगेगी आप वो करें. आप सब इसी तरह पहुंचे अपनी ज़िंदगी में कि ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि जब आपको पता है कि ये करना ही करना है, राइट? वो तो अल्लाह आपसे कराएगा ही कराएगा. बट और बहुत सारी सटल ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको गाइड कर रही होती हैं. इफ़ ओनली यू कैन क्वाइटन द माइंड, because you understand the mind, when it's the master, it's a terrible master. बुद्धा कहता है कि तुम्हारे वर्स्ट दुश्मन से भी ज़्यादा वर्स्ट इज एन अनट्रेन्ड माइंड. वर्स्ट दुश्मन से भी ज़्यादा नुकसान तुम्हें एक अनट्रेन्ड माइंड देगा, और तुम्हारी माँ से भी ज़्यादा फ़ायदा तुम्हें एक ट्रेन माइंड देगा. सो एंड वी कैन ऑल अंडरस्टैंड, अगर 90% हमारी मेंटल एनर्जी नेगेटिविटी में जा रही है, और एक ऑटोमेटिक स्टेट है, यू कांट कंट्रोल योर थॉट्स, दे कम. You don't control your thoughts. It's an automatic process. It happens. And once you engage them, then you're it, baby. Because then it plays with you. आपको एक स्पाइरल में ले जाता है. वो फिर आपको घुमाता रहता है. वो फिर एक टॉरेंट है. इधर आ जा बेबी, मैं तुझे घुमाता हूँ. इधर आ जाओ. और तो माइंड, अब जैसे एक मेरे, तो जितने भी लोग बुद्धा को पढ़ो या जितने भी लोगों को पढ़ो जो इनलाइटनमेंट, जो अल्लाह के करीब थे, जो अपनी सोर्स के करीब पहुँच गए थे, वो यही कहते हैं कि सबसे पहला जो स्टेप है ना, इज़ टू क्वाइटन द माइंड. और क्वाइटन द माइंड करने का तरीका ये कि माइंड को आप खाली ऑब्जर्व करें. जैसे मेडिटेशन से बड़ा हेल्प होता है, बिकॉज मेडिटेशन में आप खामोश बैठ के अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं विदाउट आइडेंटिफाइंग विद देम. You go outside the box and then you just sit. Okay. You don't do anything. In your mind. आप आंखें बंद करें और सांस पे फोकस करें, बिकॉज यू हैव टू होल्ड ऑन टू समथिंग. सो योर ब्रेथ इज व्हाट यू होल्ड ऑन टू. समझो कि बहुत तेज आंधी चल रही है, यू नीड टू होल्ड ऑन टू समथिंग, उड़ जाओगे. वो माइंड घुमा के ले जाता है ना, माइंड तो घुमा देता है. सो योर ब्रेथ इज दैट एंकर विच होल्ड्स यू, एंड देन यू कैन ऑब्जर्व. तो उसके बाद तुम फिर देखना शुरू करोगे कि यार अभी माइंड मुझे कह रहा था कि मेरे इस महीने कोई पेशेंट नहीं आएगा, मेरा तो इस महीने भरा हुआ था, और माइंड ने मुझे कहा था कोई पेशेंट नहीं आएगा. मैंने 2-3 दिन इतना स्ट्रेस में गुजारा, इतनी परेशानी में गुजारा, उस वजह से मैंने अपनी बीवी से लड़ाई भी कर ली, अपने कोऑर्डिनेटर को डांट भी दिया मैंने, और मैंने डर के मारे 2 गलत इन्वेस्टमेंट्स भी कर दी इसी डर के मारे, और ये तो हुआ ही नहीं. ओह ससी वाज लाइंग टू मी. बाय एंड बाय ग्रेजुअली एज यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग द माइंड, यू विल स्टार्ट सीइंग कि यार ये तो झूठ बोल रहा था, ये भी झूठ बोल रहा था, ये भी झूठ बोल रहा था. वंस you get a foot in the door, once you drive a wedge between your thoughts and yourself, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको होता है ना, आप क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं, टेनिस खेलना, फिर जब फोरहैंड लगना शुरू होता है, तो ये भी वही वाला प्रोसेस है. इट्स अबाउट ट्रेनिंग द माइंड, एंड देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग. अब मैं तुमसे जो बातें कर रहा हूँ इज बिकॉज आई कैन नाउ सी आई एम स्टिल गेट ड्रॉन इन बाय देम. 90% स्टिल, बट 10% आई कैन सी. मेरा दिमाग बातें कर रहा होता है ना मेरे से, मुझे आई नो कि ये ऑटोमेटिक रैंडम थॉट्स आ रही हैं जा रही हैं. आई जस्ट नीड टू सी देम, यू नो. I'll share this quote with you. ये मैंने YouTube के कमेंट सेक्शन में देखा था, and I always save life changing quotes. I do the same. मैं बार बार पढ़ता हूँ, और मैं अगर कोई इस तरह की टॉपिक आती है तो आई always share. तो भी आपने जो लिमिटेशन वाली बात की थी ना, उसका एक कोट, लाइक इट वाज अ कमेंट, आई डोंट नो ये कोट किसका है. इट सेज thoughts create your reality. Every action comes from an idea. So giving yourself an empowering mindset results in wonders every time. And if you don't believe so, it's because you just thought so. You just thought so. The only limit is the parameter. The limit only comes from you.
हाँ. And again the mind is a very crafty adversary तो मैं नहीं कहूँगा because आप ही का हिस्सा है, but बड़ा crafty है, and it does not only relinquish control. आपका गोल है कि माइंड को उसके लिमिट में रखो, अपने प्रॉपर जगह पे ले आए माइंड. सही है. Right now the mind is 5% but thing is 95%. Okay. So the mind is everywhere. अब 5% अगर अपने आप को 95% समझेगा तो कहानी तो बिल्कुल ही फ्लॉप हो गई. You're not going anywhere. So हमारा माइंड जो है हमारी आर्मी है basically. Do you want to get me picked up? But yes. You have to understand that if the small tries to control the bigger part, it'll be a disaster. You have to allow the whole body, the whole of consciousness to take play. You know. एक बड़ी अच्छी मैं वही I was about to come to this other thing जो आप बात कर रहे थे, मेरे दिमाग से स्लिप हो गई. Thoughts limitations आ जाइए. जो आप अभी सिनारियोस की बात कर रहे थे ना कि माइंड पास से चीज़ें लेकर आता है. सो आई फर्मली रिमेंबर द वेरी फर्स्ट टाइम जब मुझ पे मोबाइल छीनने की अटेम्प्ट हुई पहली बार, उस वक्त तक मैंने इस किस्म की थ्रेट कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी. तो वो जब बंदे आए ना, उन्होंने बोला, बहन की गाली दी और बोला मोबाइल निकाल, तो मुझे पता क्या नज़र आया, मुझे अपने गुनाह नज़र आए और अपनी माँ नज़र आई, और मैं बोले ये क्या हो रहा है. एंड देन खैर वो फिर मैं भाग गया था. इट वॉज अ वेरी स्टूपिड थिंग टू डू, बट माई फ्रेंड वॉज लाइक यार वो डिजर्विंग लग नहीं रहे थे कि हम उनको मोबाइल दें. हम भाग गए थे. दिस हैपेंड इन 2004. तो सो देन आई स्टार्टेड रीडिंग अपॉन दिस कि ये मुझे ये थॉट्स क्यों आई थी. सो टर्न्स आउट वो कहते हैं ना राइट बिफोर यू डाई यू सी योर लाइफ बिफोर योर आइज. तो वो होता ये है कि जब कोई थ्रेट आती है ना अचानक से, तो ब्रेन जो है ना सारे फोल्डर्स में घुस जाता है कि इस थ्रेट का मैं रिस्पॉन्स कहाँ पे रखा हुआ है. क्योंकि अगर तो जैसे आप मुझे बॉल कराने आ रहे हो ना, तो आई एम प्रिपेयर्ड कि यार यहाँ पिच होगी तो कवर ड्राइव मारनी, यहाँ हो तो हुक मारना है. बट अगर अचानक से आएगा ना तो ब्रेन गो हे वायर, और वो सारे फोल्डर्स एक्सेस करता है कि यार इस थ्रेट का रिस्पॉन्स कहाँ रखा हुआ है. तो उसमें वो माँ वाला भी फोल्डर ले आया, शेम वाला भी फोल्डर ले आया कि कहीं से तो कुछ निकलेगा. तो वही वाली बात कि ये पास से ही चीज़ें निकालता है. इट कैन नॉट क्रिएट समथिंग न्यू. एंड वही वाली बात है ना, जैसे अगर आप कुरान में भी देखें तो कुरान में अगर एक जगह पे है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, कि इट इज़ नॉट एग्जैक्टली शिर्क बट टू गिव अप होप इज़ ऑल्सो अ डिनाइल ऑफ अल्लाह. टू गिव अप होप इज़ ऑल्सो डिनाइल ऑफ अल्लाह. और अब ये मुझे समझ आया, इसलिए कि जब मैंने वही वाला माइंड का जो आप मॉडल आप प्रेडिक्ट करेंगे, तो आप ये देखेंगे माइंड जो है, पास्ट से माइंड ने चीज़ें निकाली और उसी का उसने वो अपना एनालिसिस किया और वही फ्यूचर पे उसने मॉडल प्रेडिक्ट कर दिया. ठीक है, और उसने वो लगा दिया. सो पास्ट बुरा है तो फ्यूचर भी बुरा ही होगा. सम ऑल्टर्ड वर्जन, वही एल्गोरिदम उसका वही है. उसने, माइंड तो सुपर कंप्यूटर है, उसने एल्गोरिदम लगा के ये कर दे, भाई चलो यही होगा. अब आपकी सफरिंग शुरू हो गई. ठीक है, बट व्हाट द माइंड कैन नेवर एंटिसिपेट इज एन एक्ट ऑफ गॉड. द माइंड कैन नेवर anticipate an act of God, or an act of God can happen anytime. An act of God is happening every time. The future is entirely an act of God. You see what I'm saying? So the mind can never actually predict the future because the future is an act of God. So to lose hope, the only time you lose hope is when you identify with the mind का model of the future. आप समझ रहे हैं? आप होप तभी लूज करते हैं ना जब आपको कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही. कोई उम्मीद कहाँ नजर नहीं आ रही? जैसे आपके दिमाग ने बोला कोई उम्मीद है ही नहीं, बट आपके दिमाग को तो कुछ पता ही नहीं है. बिकॉज फ्यूचर इज 100% अनसर्टन. नोबडी इन द वर्ल्ड कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर. आवर माइंड्स जस्ट डू नॉट हैव द कंप्यूटिंग एबिलिटी. You get what I'm saying? Because it's being written by Allah. You can't predict Allah's move, right? And Allah Ta'ala Quran में कहते हैं ना, for those that love to plot and plan, know that Allah is the greatest planner. Yeah. मतलब Allah is actually writing this. अब आप मुझे ये बताएं कि अगर आप अपनी let's say अगर hypothetically choice होती, अगर आप अपनी सर्जरी करवाना चाहते, तो आप मुझसे कराते, अल्लाह से करवाते, अगर वो चॉइस होती है आपके पास.
हाँ, अल्लाह से ऑफ कोई कोर्स। कंपैरिजन ही नहीं है ना कि अगर मतलब अल्लाह की जो रिसोर्सेज और अल्लाह की एबिलिटीज का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। उसी तरह आप मुझे बताएं, अगर आप अपनी जिंदगी की कहानी लिखवाना चाह रहे हैं, आप जेम्स कैमरॉन से लिखवाएंगे, अल्लाह से लिखवाएंगे? अल्लाह से। गेस हु इज राइटिंग द स्टोरी ऑफ योर लाइफ? ग्रेटेस्ट प्लॉट The एवर। greatest script writer in all of existence is actually writing your story. तू झूम baby, तू झूम. Yeah. You know what I'm saying? Yeah. Just surrender to what he's doing. Let him do what he's doing. He knows what he's doing. And who better than him? Clearly not my limited mind. Yeah, true. Clearly not my limited mind that only knows what I've seen. I want to know what's in future, what he has for me. I don't want to know what I've already known. वो मैंने एलिजाबेथ गिलबर्ट की एक बहुत अच्छी टेड टॉक है, योर क्रिएटिव एलूसिव जीनियस, तो उसमें मैंने बहुत बार रेफरेंस भी दिया है। मेरे फैन शायद बोर हो रहे होंगे, बट लाइक हूएवर इज़ न्यू, सो इट्स अ 17-minute टेड टॉक, और उसमें उसने यही बताया कि उसका ये मानना है कि क्रिएटिविटी जो होती है ना, इंसान बड़ा समझता है वो तुर्रम खान है, बट इट्स गॉड्स वर्क। और वो एक जो कहते हैं ना, शायरों को आमद आती है शेर की, वो रात को उठते हैं और फ़ौरन लिख दिया, या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो कि बड़े ज़बरदस्त कंपोज़र रहे हैं इंडिया के, उनकी मैं एक स्टोरी, एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था। सो जैसे टाइम मैं रात को 3 बजे धुन आती थी, हम उठ के फ़ौरन रिकॉर्ड करके सोया करते क्योंकि ये चला जाएगा। तो उसमें एलिजाबेथ गिलबर्ट ने भी यही बोला कि जो ईट प्रे लव जो वो लिख रही थी, तो शी वुड फील द प्रेजेंस कि कोई कुछ लिखवा रहा है उसके पेन से। और वो ये होता है कि वो आप, यू हैव टू कीप शोइंग अप, यू कांट बी इन योर बेड कि यार आइडिया, क्योंकि आइडिया आने का कोई टाइम नहीं होता। एंड दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड वर्किंग 7 days, क्योंकि जब मैं जूते पहन के यहाँ आता हूँ ना, तो मेरा ब्रेन ट्रेन होता है कि यार मैं तैयार होके आया हूँ, AC चल रहा है, बिल आएगा, तो आई हैव टू शो अप। अब वो कभी भी आ सकता है, और 9 out of 10 times रैंडम आइडियाज़ होते हैं, उसामा गवाएं, मैं उनको आवाज़ लगाता हूँ, कैमरे सेट करो, बस मुझे अभी करना है। तो यू कांट रियली प्रेडिक्ट कि ये चीज़ें कहाँ से हो रही हैं, और आपको लगता है कि सब आपकी तरफ से आ रहा है, बट देयर इज़ अ ग्रेटर डिज़ाइन हैपनिंग। और अगर आप उस कुछ आइडियाज़ ऐसे भी होते हैं, आया लेके बैठा हूँ मैं, अंडे दे रहा हूँ उस पर, थोड़ी देर बाद देखा इंडिया में किसी ने कर लिया। वाई? क्योंकि वो जो क्रिएटिव जीनी है ना, उसने वो काम करवाना है, और उस काम के ज़रिए बहुत सारे लोगों का रिस्क बनना था कि अगर मुझे कोई शो का आइडिया है तो उसके लिए मुझे क्रू हायर करना था, तो उस क्रू का रिस्क मेरे थ्रू जाना था। मैं मेरी क्या औकात है कि मैं किसी को दूं, मेरे थ्रू जाना था। अब मैं बैठा हूँ अंडे दे रहा हूँ, मैं कर नहीं रहा, वो जीनी कहीं और चला गया, किसी और का लगा दिया। तो यू हैव टू टैप इनटू दैट, जब वो आया है उसको फौरन करना है। दूसरी जो ट्रेनिंग योर माइंड की आपने बात की, नाउ दैट आई लुक बैक इन माई लाइफ, आई हैड हम्बल बिगिनिंग्स, और काफ़ी स्ट्रगल्स भी थी, बड़ी फैमिली थी, लेसर इनकम वगैरह वगैरह। मैं घोड़ा गाड़ी में बैठ के स्कूल जाता था, नासरा स्कूल जाता था, IBA के से थोड़ा आगे, सिटी कैंपस। तो रोज़ाना जब वो घोड़ा गाड़ी IBA से गुजरती थी ना, तो एक शरेड, पुरानी अंडा शरेड, वो 88 की, वो किसी अपने बच्चों को लेके किसी और स्कूल की तरफ जाती थी। लेकिन वो एक टाइम हमारा सेट था कि वो OMI के सामने जब हमारी घोड़ा गाड़ी होगी तो वो गाड़ी वहाँ से गुजरेगी। एवरी डे यूज टू हैपन, और मैं ऊपर बैठता था चाबुक वाले लाला के साथ। तो उस गाड़ी के पीछे एक स्टिकर था, इट सेड लूजिंग इज नॉट एन ऑप्शन। और मैं क्लास 4 में था, अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन मैंने वो लिख ली थी और मुझे वो याद थी। मुझे वो समझ नहीं आती थी उसका मतलब क्या है। फिर एज आई ग्रू ओल्डर, और जब थोड़ी सी अंग्रेजी और पक्की हुई, मतलब अच्छा ये ऑप्शन है ही नहीं। तो फॉर द ग्रेटेस्ट टाइम आई वोंट यूज द वर्ड सफर्ड, बट आई स्ट्रगल्ड। मगर मैंने अपने माइंड को ट्रेन कर दिया था। और मुझे जब पुलिस रोकती थी ना, मैं 2003-2004 की बात करूँ, जब लेट नाइट काम से वापस आ रहा हूँ, पुलिस ने उठा लिया, ये तुमने गाड़ी चोरी की है। मैं गाड़ी चोरी की, मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ? थाने ले गए, अजीज़ भट्टी थाने में रात को डाल दिया मुझे। और मैं ना अंदर हंसता था कि इनको पता ही नहीं है मैं कौन हूँ, बिकॉज आई हैड ट्रेन्ड माई माइंड कि मैं एक बहुत बड़ा आदमी हूँ, इनको पता नहीं है, दे जस्ट डोंट नो येट, एंड आई विल बी वन, एंड आई विल मेक श्योर आई विल बी वन। तो मैंने वो ना, लूजिंग इज़ नॉट एन ऑप्शन, तो मैंने अपने दिमाग में से, अपनी ज़िंदगी में से ऑब्स्टिकल्स हटा ही दिए हैं। मैं मानता ही नहीं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं वीडियोस बनाने का शौक हुआ, मैंने बना ली, ठीक है। फिर मैंने बोला यार आई नीड टू हैव अ पॉडकास्ट, मैंने वो भी शुरू कर दिया। आई नीड टू हायर अ टीम, मैंने टीम भी बढ़ा दी। आई नीड टू ब्रिंग फहद मिर्जा, व्हाट आर द ऑड्स? अल्ताफ did his magic and you're here now. Altaf didn't do any magic, he sent a text. You did the magic. So But yes, it had to happen. This conversation had to happen. This was written. So it had to happen. You're only limited by your thoughts. कि यार फहद, परसों Ali Azmat was here. Who would have thought Ali Azmat, the greatest rock star this country has ever produced, would be sitting next to me
Fahad Mirza, the greatest sculptor, would be sitting next to me. Why? I asked, and वो कहते हैं ना, if you ask and you shall receive. Yes. Ask and you shall receive. Have you seen Wayne's World? माइक मायर्स की फिल्म है. हाँ नहीं वो. तो माइक मायर्स को उसका दूसरा जो पार्ट है, it was a funny movie. उसको ख्वाब आता है, एक इंडियन मैन नंगा होता है, वो कहता है कि तुम एक कॉन्सर्ट करो, एरोस्मिथ भी आएगा, पर्ल जैम भी आएगा. वो बेसमेंट से अपना शो रन करता है. क्यों आएगा? कहता है इफ यू आस्क देम दे विल कम. तो उसको रिकॉलिंग आती रहती. सो ही डिजाइन्स द शो और एंड में एरोस्मिथ आ ही जाता है. तो जब तक आप पूछते नहीं हो, द आंसर इज नो. यू नो कहना, तुमने जो बात करी कि तुम जब पुलिस वाले जाते थे और तो उनको तुम हंसते थे कि उनको पता ही नहीं है तुम कौन हो, एंड देन यू विल प्रूव टू द वर्ल्ड. आई हैड अ सिमिलर बिलीफ. मेरा भी हमेशा से यही बिलीफ था कि मैं I am someone and I will become someone. And you know now अब जब दुनिया recognize करती है, but मुझे कुछ नहीं लगता कुछ हुआ, because हमें तो हमेशा से पता था कि हम तो ये हैं. I'm not surprised. हमें तो ये I'm not surprised. I'm like, oh, I'm not blown away by what's happening because I knew it always happen. तुम समझ रहे हो, मैं बसों में रिक्शों में गए, स्ट्रगल किया, 16 घंटे पढ़ा लिखा जो भी किया, but I always knew, and I also, and now एक्सेप्ट नाउ, अभी जो मुझे रियलाइजेशंस आई हैं, इससे अब ये हुआ है कि नाउ आई नो, जो मेरे जो बचपन के ड्रीम्स हैं ना, जो सुन के मेरे बाल खड़े जाते थे मेरे हाथों के ऊपर, कि यार ये तो नेपोलियन कहता है ना, इफ़ योर ड्रीम्स डोंट स्केयर यू दे नॉट बिग इनफ. नाउ आई नो दैट इवन दे आर पॉसिबल, बिकॉज मुझे पता है कि करने वाला तो अल्लाह है. हाँ. तो मैं तो वही आदमी हूँ जो सरवत से बात करने के लिए अपने खनसामा से पीसीओ के पैसे उधार लेता था यार. मैं तो आज भी वही हूँ. We're gonna get to that. So I'm still the same guy. So I have not changed. I am still the same guy. Do you understand? And to further that, I will tell you that nothing in your life that you will achieve or you can possibly achieve, even becoming the president of the US, will outdo who you already are. Do you understand? तुम इस दुनिया में जो भी अचीव कर लो, you can still not outdo who you already are in this moment. Because you have been made by Allah, the one. तुम समझे मेरी बात? तुम जो भी अचीव कर लो, इस खाल के टुकड़े से ज़्यादा नहीं हो सकता. हाँ. एक मेरी पूरी बॉडी को छोड़ दो, मेरी स्पिरिट को, मेरी सोल को छोड़ दो, और सोल कहाँ से आई है, वो भी कहाँ से आई है, वो भी किसका हिस्सा है. Do you understand? So तुमने बोला I'm a great man. Every human being is a manifestation of the divine. Do you get it? हम उसकी रोशनी की रिफ्लेक्शंस हैं. जैसे जो चांद है, उसकी खुद की कोई रोशनी नहीं है, लेकिन वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है. लेकिन ऑन फुल मून इवनिंग क्या रोशनी रिफ्लेक्ट करता है. उसी तरह हम अल्लाह के एट्रीब्यूट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं. हम मर्सीफुल हैं इसलिए कि अल्लाह मर्सीफुल है. हमें मर्सी क्यों आई, इसलिए हमारे रब में मर्सी है. हम हसीन क्यों है, इसलिए कि अल्लाह हसीन है. हम ताकतवर क्यों है, इसलिए कि अल्लाह ताकतवर है. तो अल्लाह की जो क्वालिटीज़ हैं हम उसको रिफ्लेक्ट करते हैं. व्हाट अ ग्रेट प्लेस टू बी, व्हाट एन एम्पावर्ड स्टेट टू बी. डू यू गेट इट? बट देन व्हाई डोंट वी फील लाइक दैट? बिकॉज वी लिमिट आवरसेल्व्स. Absolutely. Acha, speaking of Sarwat, so obviously you are great in your own right, and so is Sarwat. What are the dynamics like? Just jin couples में दोनों couples are really out there. So what's the balance like? How do you maintain the balance? So मेरा और सरवत का जो है ना एक synergy है. You know the concept of synergy. So the concept, for the viewers' benefit, I explain the concept of synergy. Synergy होता है कि अगर दो चीज़ें होती हैं, जैसे 8 को लगा ले तो 8 + 8 is 16. लेकिन अगर ये दोनों synergistic होंगे ना, तो इनका जो रिजल्ट होगा would not be additive, would be multiplicative. So they would be 8 × 8 64. ये synergistic processes कहते हैं. कुछ चीज़ें होती हैं दुनिया में, जब आप कुछ पर्टिकुलर लोगों को चीज़ों को साथ ले आते हैं, तो रिजल्ट इज़ एक्सपोनेंशियल. सो मेरा और सरवत का भी जो साथ है ना, एक सिनर्जी है. यू नो मेरी ज़िंदगी में इतने सारे उससे आए, जैसे ये मेरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ तवक्कल एंड बिलीव इन अल्लाह केम फ्रॉम हर, बिकॉज तो बिल्कुल ही अल्लाह तवक्कल है. हाँ. और मुझे लगता था कि जब तक आप हर स्क्वायर इंच के लिए लड़ेंगे नहीं, मरेंगे नहीं, आपको कुछ मिलेगा नहीं. आई बिलीव दैट आई हैड टू वर्क
hard for everything. I had to grind myself in the dirt for everything. उसके बगैर मुझे कुछ मिलेगा नहीं, तो मुझे वैसे मिलता था. अब मैं उसको देखा वो चिल में चल रही है, वो कह रही है हो जाएगा. हाँ, हो गया. I'm like, और पहले तो चलो तुक्का भी हो सकता है ना, बट कंसिस्टेंटली ridiculous things are happening. Like she is breezing through life and she is saying हो जाएगा. और उसको देख के फिर मुझे, बिकॉज देखो देने वाला तो अल्लाह ही है ना, उसको ये भी अल्लाह नहीं दिया ना ये मकाम, तो उसको देख के फिर मैं रियलाइज़ किया कि ऐसे भी होता है. वरना हम तो हर स्क्वायर इंच के लिए लड़ रहे थे, हर स्क्वायर सेंटीमीटर के लिए लड़ रहे थे, हर चीज़ के लिए हमें लगा था हम खुद कर रहे हैं. तो जब समझो कि खुद कर रहे हो तो कर लो खुद, फिर यही एक एक इंच मिलेगा, एक एक सेंटीमीटर मिलेगा, लड़ के मर के, और उस पर छोड़ दोगे. यू नो, सो द हर बिलीफ इन अल्लाह, एंड उसका जो जहन इतना साफ सुथरा था, जो हम बातें कर रहे हैं बीइंग इन द नाउ, शी इज़ एन एम्बॉडीमेंट ऑफ दैट. एंड अगेन ये भी अल्लाह का ही ब्लेसिंग है. शी वॉज नेचुरली मेड लाइक दैट. तो वो रहती मोमेंट में, वो अल्लाह तवक्कुल पे चलती है, वो काम करती है, दिल से काम करती है और चिल करती है. शी चिल्स और अल्लाह उसको दे रहा है. I've had the opportunity to work with her for a project. और और वो होता है wonderful person to work with, by the way. And not just one, twice actually. एक तो अरवर मकसूद साहब के साथ था, और एक हम एक विजिट पे गए थे रायवन से भी कहीं आगे. So you know, obviously जब आपका परसेप्शन बड़ा डिफरेंट होता है. अब लोग मुझे स्क्रीन की तरफ के पीछे से देखते हैं तो उनका परसेप्शन बड़ा डिफरेंट होगा, बट मेरी पर्सनल लाइफ में मेरी क्या प्रैक्टिसेस हैं वो शायद लोगों को नहीं पता होती, बिकॉज दे हैवंट बीन विद मी. सो सिमिलरली जो टीवी एक्टर्स हो गए, फिल्म स्टार्स हो गए, इनका भी एक परसेप्शन होता है. बट लाइक व्हेन यू एक्चुअली हैंग आउट विद देम और एक्चुअली स्पेंड अ डे विद देम, देन यू सी द रियल देम. उनको एक रियल उसमें देखते हैं. दो लोगों के साथ, खैर मैंने बड़ा लिमिटेड काम किया है, सो आई कांट से दिस फॉर मोर पीपल, बट दो लोगों ने जो है ना मुझे दिल से बड़ी इम्प्रेस किया. एक सरवत गिलानी और एक जाहिद अहमद, क्योंकि इन दोनों के साथ जो मैंने ऑल डे शूट्स किए हैं, तो बाकायदा जो स्केड्यूल है उसमें लिखा होता था कि जी ए वाला टाइम जो है नमाज का है, तो शूट नहीं होगा. सरवत ने नमाज पढ़ सरवत नमाज नहीं छोड़ती. सेम चीज़ मैंने जाहिद अहमद की देखी कि जो शॉट बना हुआ है ना, वो ऐसे बना हुआ है कि वो असर की अजान से पहले उसको ख़त्म होना है, क्योंकि जाहिद नमाज नहीं छोड़ सकता. इन दोनों चीज़ों ने मुझे बहुत डीपली इम्पैक्ट किया. और मैं ये जितना जहाँ भी मुझे मौका मिला, मैंने हर जगह ये बात ज़रूर शेयर की. आई थिंक ये फर्स्ट टाइम मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, बट इट हैज़ डीपली इम्पैक्टेड मी. वो एक डिफरेंट रेवरेंस आ जाती है, इज्जत आ जाती है इंसान के लिए कि यार वो देखो एक मकाम पे अगेंस्ट द ग्रेन जाके कोई कर रहा होता है. हाँ, ये नहीं आई अकड़ के जी मैं सुपरस्टार और जी मेरे इतने मिलियन फॉलोअर, ये वो नहीं जी. जो असल फॉलोअर तो हम किसी और के हैं, हम किसी और के, देने वाला ही कोई और है. हाँ, तो वहाँ हमने हाजिरी ज़रूर देनी. यू नो, जाहिद जो है ना, जाहिद आई फील कि जाहिद का तो वाकई हाथ अल्लाह ने पकड़ा हुआ है. माशाल्लाह माशाल्लाह. बिकॉज जाहिद के जो फिज़िकल प्रॉब्लम्स हुए, जो इश्यूज़ हुए, और काफ़ी उसके इश्यूज़ हुए, यू नो, बट माशाल्लाह अल्लाह ने उसको, ही इज़ डूइंग द बेस्ट वर्क फॉर एनी मेल आर्टिस्ट इन द कंट्री नाउ. फिल्म्स कर रहा है, ये कर रहा है, और मैंने तो खुद उसका पर्सनल ये ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, बिकॉज आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग. जाहिद से, उसकी वाइफ से मेरी सरवत की दोस्ती थी काफ़ी पहले से, कोई 5, 6, 7, 8 साल से. आई थिंक 6 साल से तो आई थिंक है ही है. एंड आई पर्सनली सीन हाउ वंस ही मूव फ्रॉम इस्लामाबाद टू कराची, इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड इट्स सो ब्यूटीफुल टू सी माशाल्लाह वेयर ही इज़ कम एंड व्हाट ही इज़ डूइंग. एंड अगेन देने वाला अल्लाह है, उसकी रज़ा है, जिसको जो दे दे. व्हाट आर योर ओपिनियंस अबाउट पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री? यार, I'm not a big fan of Pakistani drama industry these days, although I'm just doing this play called Parizat these days. Oh nice, कल उसका प्रीमियर है. कल उसका last episode in the cinemas. Wow. Yeah. Are you going to the cinema? I'm going to the cinema. I'm taking my parents with me. I'm taking my surgical staff with me, hospital ka staff, ghar ka staff. I'm taking all of them with me. Yeah. Because I would love to see myself. I've never been on the big screen. Oh yeah. I want to see myself on the big screen. Yeah, that's awesome. So it's going to be nice. मुझे युमना ने एक्चुअली ये बात रियलाइज़ कराई जब हम सीन शूट कर रहे थे. युमना सेड कि यू नो आई एम सो एक्साइटेड कि मैं बिग स्क्रीन पे आऊँगी, बिकॉज मैं कभी सिनेमा के पर्दे पे नहीं आई हूँ. एंड शी फहद इज़ गोना बी सो लकी, वी आर सो लकी. एंड आई एक्चुअली गॉट स्टार्ट थिंकिंग कि वाकई अल्लाह ने कितना बड़ा एहसान किया है कि यू नो आई एम नॉट इवन डूइंग अ मूवी येट, यू गेट टू सी योरसेल्फ ऑन द बिग स्क्रीन. तो फिर मैंने अपने बच्चों मेरे, एंड देन मेरा जो छोटा बेटा है केम होम एंड सेड बाबा, उसके कोई दोस्त की फैमिली देख रही थी, तो सर वो वी सॉ योर बाबा शो, तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं ना, उनके दोस्त बोलते हैं कि बाबा आ रहे हैं. बच्चे भी फ्लेक्स कर रहे होते हैं, बड़ा खुश.
So I said, okay, let's go watch it in the cinema. Baba, I'm so proud of you. I can't wait to see you in the cinema. So sweet. That's Yeah. so sweet. I did Mashallah. a small role with Zaid Ahmed. Sabah Kamal is also in that movie. So it's supposed to come out on Eid, but let's see Inshallah. COVID का क्या सीन है. So मेरी तो डायरेक्ट जंप ही बड़ी स्क्रीन पे होगी. तो मैं तो इतने से माशाल्लाह. फोन पे आता था. अब अचानक वो स्क्रीन पे है तो चले 4 सीन ही लेकिन है तो फिर भी. Dude, even one scene, यार. Yeah. Even one scene. Even one scene. अब जब I can't reveal anything, but Yeah. even एक scene भी ना, एक scene भी बहुत है. एक मोमेंट भी बहुत है. You know, I mean, और इस ड्रामे के बाद तो मैं देखा है कि एक सीन भी बहुत है. वाकई जबरदस्त. Even one scene is. अच्छा, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट मॉर्निंग शो में जो घरेलू टोटके और ब्यूटी ये सारा चल रहा होता है? व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दैट? यार, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ ये जो घरेलू ब्यूटी टोटके होते हैं और इसमें बहुत सारे लोग चीज़ें मिला के ज़्यादा कुछ पे तो कुछ होता ही नहीं है. फिर कुछ जो ऐसे वो स्टीरॉइड इधर उधर जो मिला के करते हैं उससे स्किन एक्चुअली थिन होकर ख़राब हो जाती है. सो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ घरेलू टोटके. हाउएवर आई ऑल्सो नो दैट हमारी मेडिसिन को हर चीज़ नहीं पता है. सो बहुत सारे हर्ब्स में और बहुत सारे टोटकों में भी बड़ा सच है, बिकॉज ये सैकड़ों सालों से चलते हुए आ रहे हैं एंड देयर मस्ट बी सम विजडम इन इट. सो आई कांट कम्प्लीटली डिनाई इट, येट आई कांट ऑल्सो से कि हाँ बिल्कुल सही है. सो आई एम एम्बिग्यूअस अबाउट देम. सही. अच्छा, बिफोर वी रैप अप, मैं अब चाहता हूँ, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वॉचिंग दिस, उनको एक कंसर्न तो रहता ही है, बिकॉज दे माइट वांट टू गो फॉर अ प्रोसीजर और अ सर्जरी, और वो शायद कंटेम्पलेट कर रहे हो. व्हाट आर द बेस्ट नोन, नॉट द बेस्ट नोन बट लाइक कॉमनली स्कैम्स जो इस इंडस्ट्री में हो रहे हैं पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, जिससे लोगों को बच के रहना चाहिए? यार, कॉमन स्कैम्स तो आई वुडंट से स्कैम्स, बट आई वुड से कि अनक्वालिफाइड लोग प्रोसीजर्स कर रहे हैं जो क्वालिफाइड नहीं है. हाउ डू वी फाइंड आउट कि वो एक लगा देते हैं जी शील्ड? एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसे मैकेनिज्म भी नहीं है मालूम करने के लिए. देयर नो मैकेनिज्म्स. तो आप मतलब आप डिग्री भी लोग ऐसे लगा देते हैं, और हमारी इंडस्ट्री में एस्थेटिक में और कॉस्मेटिक के अंदर डिग्री का भी नहीं होता. हाँ. लोग पार्लर वाले भी शुरू हो जाते हैं, MBBS करके डॉक्टर भी शुरू हो जाता है. सो अनफॉर्चुनेटली रेगुलेटेड नहीं है और कोई क्राइटेरिया भी नहीं है. सो आई वुड ओनली से कि कोई एटलीस्ट एक प्लास्टिक सर्जन भी बहुत सारे इतने एस्थेटिक्स की क्वालिफिकेशन नहीं की हुई होती है, फिर भी ऑपरेट कर रहे होते हैं. आप समझे मेरी बात? वो ट्रेन किसी और चीज़ में कर कुछ और रहा है. So it's not just enough to be a plastic surgeon या dermatologist to do what you're doing. You have to understand what you're doing. So बस अब यही है कि आप उनसे उनका रिजल्ट्स का पूछ लिया करें, जाके देखें. अगर कोई वन थिंग आई विल टेल यू, कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है ना कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा ऐसे हो जाएगा, फिर मसला है. अगर कोई ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है ना, फिर मैं कभी भी किसी ओवर कॉन्फिडेंट सर्जन के पास नहीं जाऊँगा, बिकॉज उसको पता ही नहीं है. Because I will tell you, I'm a sailor and I sail and I have win trophies and everything. But every time I go in the ocean, I understand. मैं जितना भी अच्छा सेलर हूँ ना, एक लहर और सारा गेम ओवर हो गया. तो अपनी औकात मुझे हमेशा पता होती है. उसी तरह जब मैं ऑपरेट करता हूँ ना, तो इंसान का जिस्म समंदर से भी ज़्यादा वसी और रीज़ है, और उसको बनाया अल्लाह ने, और हमारी स्किल तो बहुत लिमिटेड है. तो व्हेन आई ऑपरेट ऑन द बॉडी, आई गिव इट एवरी रिस्पेक्ट एंड आई अंडरस्टैंड माई प्लेस एंड देन आई ऑपरेट. तो कोई आदमी कह रहा है ना मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये नहीं, ही डज नॉट नो व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट. लवारिस फिल्म में वो अमिताभ बच्चन वो एक काले रंग का दुपट्टा बांध के रखता है. इवन व्हेन ही बिकम्स अ बिगर डॉन, वो कहते हैं ये काला कफन नहीं, मुझे मेरी औकात याद दिलाता है. ये मुझे मेरी औकात वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ काला कफन, इफ नॉट फिजिकली देन एटलीस्ट मेंटली, टू नो योर लिमिट्स. Yeah, to absolutely. Fahad, thank you so much. It has been an honor and absolute pleasure to have you on the podcast, and I hope you enjoyed the conversation. And I hope आप लोगों ने भी काफ़ी enjoy किया होगा. Fahad का Instagram mention है. Do check out his work if you haven't. You can consult him, or I'm not giving any medical advice because these are my limitations, but like he's amazing at what he does. मुझे कुछ कराने की ज़रूरत है, like ऐसी कुछ भी नहीं, chilling है, okay है, sorted हूँ मैं. You're sorted. Beauty, चले भाई Greek god बना हूँ मैं. चले, thank you so much, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. And if you want to support, you can do that on patreon.com/ganjiswag, और इंशाल्लाह आपसे
दोबारा बहुत जल्द मुलाकात होगी with a wonderful guest as Fahad Mirza or even Khuda Hafiz. Thank you for having me. Thank you. It was a pleasure talking to you. I love your studio. I love how you do things, and all the luck to you. Higher and higher, and so on and so forth. Thank you so Inshallah. much. Much obliged.